हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ और मैं आपका स्वागत करता हूं साधन के नए पॉडकास्ट पे। एंड वी हैव वंडरफुल गेस्ट टुडे हु इज एक्चुअली अ वेरी सक्सेसफुल इन्वेस्टर एंड ही बिकम financially free at the young age of 29. I'm talking about Shubham Sethi, popularly known as the logical investor in Twitter fraternity as well as on YouTube also. So we all have seen his YouTube videos and we have seen his tweets also, but now actually I've requested him to come along and talk to us about something which is very relevant, that how to use technical analysis in fundamental setup. Look forward to learning lots of new things from Shubham in this. I welcome Shubham on this video discussion. Hope to learn a lot from you. Awesome. Thank you, Amitabh. Thanks for inviting me. I think the feeling is mutual. आपसे भी I think talked so many times. Every time I learn something new, and hopefully I will keep getting that love and that knowledge from you in future as well. Just to share with the audience that we have been collaborating on offline and this is the first time we are coming online collaboration. So it's Shubham and our association goes back 2 years back, and we have benefited a lot from our insightful discussions which we used to do in over the phone call. Hi Shubham, so we know that you have been successfully growing your wealth and you are financially independent as well at a quite young age. So something extraordinary you must be putting in place. तो क्या आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि आपका सेटअप क्या है इन टर्म्स ऑफ, आई नो यू आर अ फंडामेंटल गाय and you kind of understand a business fundamentally, but you kind of overlay it with the technical analysis. My question to you is that how a fundamental analyst should use technical analysis as a tool to kind of optimize his return, or should it form the base? How you take technical analysis with respect to the fundamental analysis? So to answer that question, I think let me take you through my journey, and I think it will basically answer your question automatically. The topic of the presentation is reading the mind of a trader, right? Right. But I think before that, I was like a hardcore fundamental investor, right? So and जो लोग ऐसे लाइनें खींचते रहते थे ना चार्ट्स के ऊपर, तो मुझे ये लगता था कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब I felt like, so there is no logic behind it, right? और ऐसा होता है, I used to compare it with somebody like a palmist. So palmist होता है ना, बोलते हैं कि भाई हाथ की रेखाओं पे आपका फ्यूचर बदल जाएगा, लेकिन शुरू से मतलब कि I never believed in astrology or those kind of stuff, right? So ऐसा लगता है कि नहीं यार, जो अब इंसान की मेहनत ही है, अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, राइट? तो सेम चीज, सेम कोरिलेशन। तो मुझे लगता था कि यार ये क्या लाइनें खींचने की वजह से चार्ट, मतलब स्टॉक ऊपर या नीचे थोड़ी ना जाएगा। अगर बिजनेस अच्छा करेगा तो स्टॉक ऊपर या नीचे जाएगा, राइट? सो बेसिकली टोटली हार्डकोर एंटी टेक्निकल एनालिसिस काइंड ऑफ अ पर्सन आई यूज्ड टू बी। ठीक है, तो अच्छा हुआ क्या कि 2020 में we all know there was COVID, and then post that there was a bumper rally, right? And people made a lot of money, right? But somehow I made a few mistakes, right? So I'll talk about the mistakes आगे जाके, but मोटा मोटा जितना पैसा बनाना चाहिए था उतना पैसा नहीं बन पाया, right? मतलब ठीक ठाक बना, लेकिन जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बना। And I was looking at Twitter, a lot of people were sharing charts and how they were able to exit exactly on time, एकदम टॉप पे एग्जिट किया, बॉटम पे बाय किया, so I thought okay, I just thought कि थोड़ा बहुत चलो पढ़ के देखते हैं, शायद कुछ सीखने को मिले। हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत अभी भी अगर आप बोलोगे तो I do not consider myself as a trader or a hardcore technical analyst, but I basically am trying to understand कि यार ये लोग क्या, किस तरीके से इनका थॉट प्रोसेस क्या रहता है, जो ट्रेडर्स होते हैं उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है। एंड अगर उस पूरे ग्रुप में से अगर मैं कुछ थोड़ी बहुत चीजें अच्छी अपने लिए ले पाऊं, जो कि मैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस के साथ कंबाइन करके कुछ अल्फा जनरेट कर पाऊं, राइट? सो दैट इज व्हाट माय गोल इज। So now coming to the point, why I feel it is important. Why do you want to read the mind of a trader? Aren't we all long-term investors, right? So we are long-term investors. Lekin if you look at the market, right, basically there are three types of players. One who is doing it technically, one who is doing it fundamentally, and third who is basically doesn't know what he's doing, right?
सो नाउ अगर मेजॉरिटी लोग टेक्निकल एनालिसिस यूज कर रहे हैं तो ना चाहते हुए भी स्टॉक there will be sudden buying or sudden selling because some chart pattern maybe it will be temporary because in the long term fundamental is what will drive Correct. the stock of the company. But in the short term there could be aberrations, जैसे कि अगर कोई सपोर्ट आया तो अचानक से बड़ी वॉल्यूम आ जाए, कोई तगड़ा रेजिस्टेंस आया तो अपने आप थोड़ी सी सेलिंग आ जाए, राइट? सो दैट वाज अ थॉट प्रोसेस व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट कि यार चलो ठीक है, अगर बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो मे बी शायद कुछ इंटरेस्टिंग होगा. सो एंड अनदर थिंग वाज, investing is basically an art and not a science, right? So I was like कि यार how other players are operating, अगर if I know that maybe I can take some advantage of that, कि हो सकता है कि वो कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि हो सकता है मैं शायद उसका उल्टा कुछ करके शायद ज्यादा पैसा बना पाऊं, right? At least I should know कि how all the players in the market are working, Right. Okay. right? So that was the initial thought process. So coming to the point, which camp do I come from? So basically I come from, now today if you talk about me, I basically do, people do techno funda, but I would say I do funda techno. So I always Okay. give more weightage to fundamentals, but I try to use technicals to slightly try to time my buying, try to time my exits, and basically do my allocation properly. So I'll talk about all of that in detail, how I basically try to trim down and trim up my position and try to use technicals along with fundamentals in the later part of the podcast. Oh, wonderful. So just a follow up on this. So how you would like to quantify in terms of, let's say techno funda guy would pick techno more than 50%. So he qualifies as a techno funda guy, let's say hypothetically. So what's your weightage in terms of both these pedagogies? I personally use funda techno because for me, I would not say in percentage terms, it is in hierarchy terms. So Okay. basically fundamentals come first, and अगर फंडा में कोई चीज फेल हो गई तो technical doesn't matter. I will not even try to do trading or any of that stuff. Right? So you are not a trader. You are an investor who is kind of taking the best practices of a trading using technical analysis, if I understood it right. Yes. Okay. And basically there are certain good things and certain bad things about it. I will talk about it when I talk about the philosophies of a trader and how they operate, and then I can say okay whether something is working for an investor or it might not work for an investor, and basically try to weigh the pros and cons of both the approaches. Sure, let's go over there. Okay, let me start with one thing, which is liquidity, right? So it is a parallel concept. Basically, we all know what is liquidity. Liquidity is when money flows into an asset, right? That is liquidity, right? It can just be an asset, or it can be sometimes an economy, maybe like, so we know what is going on with China or with Russia, right? So no, very little money is flowing in Russia or China, right? So I'm trying to just see what is the difference between a fundamental investor and a technical analyst. So fundamental investor jo hai, he looks at value, right? He tries to see whether there is growth, right? Whether the valuations are reasonable, right? Whether the management is good, right? Whether the ROCE will grow, or whether the dividends will grow, whether the debt will fall, or things like that, right? So he has n number of ratios that a fundamental investor uses and tries to see whether the company is going in an improving trajectory or is it worsening. And plus sometimes it is worsening, but you might say that the value of the company is so low that it is basically a screaming buy, right? But over time what I have realized is that ultimately market is a collection of people, right? And money has to flow in. So valuation ये तो बता देगा कि ये चीज सस्ती है, लेकिन हो सकता है कि वो अगले 5 साल तक सस्ती ही रहे, राइट? एंड अगर वो अगले 5 साल तक सस्ती ही रहने वाली है तो मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, करेक्ट, राइट? राइट? So yeah, value of a stock never materializes unless there is enough liquidity. So as I was giving example of Russia and China, right? So अगर आप रशिया का पूरे मार्केट का पी देखोगे तो आज शायद 8 या 9 का मार्केट का पी चल रहा है, राइट? उनके इंडेक्स का पी चल रहा है, right? Individual assets which are growing 15-20% are available at 6, 7, 10 PE, right? Yeah. So even though as a value investor there is a lot of value, right? And to be honest, I
had a very similar feeling कि यार चाइना बहुत सस्ता हो गया है एंड अब चाइना में पैसा लगाने का टाइम आ गया है, right? But now that I look at technical analysis, I try to refrain myself from doing it, Okay. right? Because obviously there are bigger risks there because of which people are not going there, right? So valuation, if you look at, it is a perceived margin of safety, not a real margin of safety. So obviously it is real, but it is in the mind of an investor. Unless the market agrees with you, right, you will not make money. Correct. Right? So basically you need everyone. So as an investor, it is said ki yaar, go when there is blood on the street, or basically always try to be basically against the crowd, right? Or basically trying to go against the crowd, right? But what I have realized is you do not make, when you go against the crowd, you make money when crowd joins you, right? So basically you want to be early when there is less crowd, but you do not want to be in places जहां पे बहुत टाइम तक crowd आपके साथ agree करेगा ही नहीं, right? The market can remain irrational for a long period of time, and तब तक के लिए you have this kind of a backup which stops you to not go there जहाँ पे liquidity नहीं है. So in a way, exactly. Coming to technical analysis, right? So technical analysis is how I consider it is like जैसे fundamental investor different types of data देखता है, right? Liquidity is one data which fundamental investor does not look at, right? And technical analysis, think of it like one more data point, which is liquidity analysis. So it is adding a layer of liquidity on top of whatever analysis you have already done. Okay. And by liquidity, I mean whether the market participants are interested in the asset or they are not interested in the asset. And sometimes it is best to enter when the market participants start to become interested, right? So to summarize, what I do is, अगर मुझे fundamentally कोई चीज बहुत ही अच्छी लग रही है तो मैं उसमें position definitely ले लूंगा. मतलब I will not look at technical analysis, but वो मेरा position 0.2%, 0.5% से ज्यादा नहीं होगा. Okay. Right? So basically it goes in my seed portfolio, which basically is total पूरे portfolio का less than 10% total combined value में, and 90% of the portfolio will be in the place where there is enough liquidity and there the fundamentals are also right. So as in when the liquidity starts to come in and I start to get a sense that the liquidity is flowing in, वो 0.5% का position will become a 5% position in a matter of few days. You act quickly, and obviously technical analysis helps you. Do you pyramid up, or you do it in over a week, or how do you size your bet? Basically talk about pyramiding also. I do not pyramid down. I only pyramid up. So that is my rule number one, and that is what all the traders do. So what is trading, right? So trading is simply that you basically go in an asset jahan pe the demand is more than supply, right? So you do not care whether there are good fundamentals behind it. Kabhi kabhi fundamental investing mein aisa hota hai ki bhai you buy high and you try to sell higher. It could be that kind of a case. It could be already at irrational valuation, but the charts are very, very supportive, right? But when you add a fundamental layer on top of it, right, you basically exclude like 70-80% of those cases and only focus on cases where there is enough value. And then you see कि यार इसके ऊपर अच्छा liquidity आना शुरू हो रही है. And I'll talk about all the examples and how to do it in the later part of the video. So before moving on, I think technical analysis is not a rocket science. It's all probability, right? So even fundamental analysis is probability. जब आप कुछ चीज आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, you cannot say कि guaranteed ऐसा होगा ही होगा. You basically try to align the odds in your favor, right? Similarly, technical analysis say you basically add a few more percentage points to it. अगर fundamental analysis में आप 70% confident थे, लेकिन when you know that the market has started to agree with you, you can be maybe like 90% sure or 80% sure. As a human being, right, we always are scared to go against the crowd. Right? And major problem होती क्या है कि जब आप fundamental analysis कर रहे हो और stock गिरता चला जा रहा है, right? Even though कुछ लोगों का nature ऐसा होता है कि we are smarter, right? हम तो पैसा बना लेंगे and market ही गलत है और हम ही सही हैं. लेकिन unless the market starts agreeing with you, you will not make money, right? And so it is always better to be with the crowd psychologically. So I'm talking about the psychological aspect. So trading
is easier to do as compared to investing. Why? Because in trading you are always with the market, you are with the crowd, right? You are never against the crowd and you still make money, right? As soon as आप crowd आपके खिलाफ होता है, आप तुरंत एक झटके में निकल जाते हो. So basically अगर आप genetically देखो thousands of year of evolution के हिसाब से, it is something that a human being is trained to do. Correct. As an investor, you try to go against the crowd, you try to find bets where the market does not agree with you, and then that is why when you are wrong, you do not want to accept your defeat, and that is when most blunders happen, and technical analysis helps you save on those blunders. Right. And that is why it is important, and one should at least understand what it is. So as I was talking about, it's all probability. So there are these chart patterns जो ये लोग देखते हैं, price volume actions, breakouts, moving average, indicators, etc., etc. But even after adding all of them, it's just it's still trying to get the odds in your favor. It's not a guarantee. So that is the first thing. So how can we improve the odds? So basically try to take the best of both worlds, and as I said, I used Funda Techno. Before I move ahead, I want to talk about some of the mistakes that I did early in my career, and I learned basically अगर मैं उस टाइम पे टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा बहुत भी समझता तो मैं ये गलतियां नहीं करता, right? We all do these mistakes, and so they are nothing new. So one is obviously you like something, you did not buy something, right? Or you sold something too early, right? You basically sat on something for years without the price moving up, and then जब आपका patience give up कर दिया और आपने बेचा और वहीं से वो 10 bagger हो गया, right? You sometimes say कि नहीं यार मैं तो गलत हूँ ही नहीं, and आपके आंखों के आगे पर्दा आ जाता है and you feel कि मैं तो सही हूँ, and वो स्टॉक वहां से 10%, 20%, 30%, 50%, 70% भी करेक्ट हो जाता है, and you don't want to accept कि यार मैं गलत हूँ, right? Possible. Yeah, so basically very deep cuts. So these are all real. I have real examples for all of them where I have done all these mistakes. Waited for too long, finally exited without enjoying fruit. So MSTC was one example. I presented it on YouTube. I bought it. I waited for I think almost 1.5 years. मैंने बेचा है और वहां से 3-4 महीने के बाद वो 3 गुना हो गया है. Exactly same happened with me on Hindustan Foods. Although I did not made a video, but I had the same fate. Yeah. Sometimes ऐसा भी होता है कि कंपनी खराब है, आपको पता है, right? But somehow it entered your portfolio and it is still rising and you just cut it, right? And you just want to get rid of it क्योंकि आपको fundamentally समझ आया कि नहीं यार. But कई बार ये होता है कि यार अगर उसे I'm not saying कि उसे long term investment बना लो, लेकिन opportunistically I think sometimes ऐसा होता है कि technically वो इतना attractive होता है कि maybe आप 1 महीना रुक के बेचते तो आप थोड़ा better value ले पाते, right? Those types of things. Even though I do not consider it as a big mistake, a small mistake, क्योंकि मतलब if you don't like fundamentally, it's better to cut off. But sometimes if you understand the psychology of market, it is better to try to make use of it. Position sizing, very very big mistake. I think I bought CDSL. It became a 7-bagger for me, even though I did have a position, but the position size was hardly 3-4%. So it made good money. I'm still happy. लेकिन आई थिंक उस टाइम पे जो चीज मैं देख पा रहा था, अगर आज वही वैसा स्टॉक मुझे मिलेगा तो मैं उसे 20% पोजीशन पे खेलूंगा. आई रिसेंटली प्लेड समथिंग ऑन Inox Wind. I got a very similar hunch and I basically played it for I think at 20% allocation. And then obviously emotional melodrama. Basically पास्ट में क्या होता है कि आप इमोशंस की वजह से आप अननेसेसरी अपने आप को इमोशनली चैलेंज कर रहे हो. टाइम्स यू कुड जस्ट से कि नहीं यार ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ गलती है, जस्ट एग्जिट इट फॉर नाउ, एंड देन व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स टू अग्री विद मी आई विल एंटर बैक, right? As an investor, that is the hardest thing to do. Correct. Right? Buying a same stock at higher price is the toughest thing. Yeah. But with technical analysis, it is very easy to do. These are some of the mistakes, and with the examples. Let me start by explaining what is technical analysis and how to do it. What is the most important thing for an investor, right? It is the business prospect, management, growth, debt reduction, etc., etc. There are n number of metrics, right? But what is the most important aspect for a trader? It is only 2 things. It is the price and the volume, right? तो अगर price मेरे favor में है, volume मेरे favor में है, then I don't care about all the other things, right?
So to explain what traders do, I'm a BTech, right? So I always try to correlate it with things जो कि मैंने पढ़ी हैं, right? So in computer science, there is an algorithm called ant swarm algorithm, right? So a lot of times what happens is कि यार दुनिया में जो चीजें होती हैं नेचर से इंस्पायर होके आप you do things in real life, right? For example, drones, right? There are different types of drones. Pigeon type की drone भी हैं जो कि वैसे bird से inspired हैं. You have like आप videos देखे होंगे. There are n number of drones, right? So basically you get inspiration from nature and then you basically apply it in real life. Yes. So I think very similar. I was reading about a packaging company. So if you look at who is the best packaging in the world, right? Nature does the best packaging in the world, right? अगर आप मटर देखोगे तो मटर के दाने एक एक बड़े प्यार से लगे होते हैं, अनार होते हैं, राइट? सो अनार को अगर आप देखोगे तो अंदर इट इज सो सोफिस्टिकेटेड एंड इट इज प्रोटेक्टेड सो वेल फॉर ऑल द कैलामिटीज, राइट? सो आई थिंक now companies are trying to take advantage of things from nature and then use it. Similarly, in computer science there is an algorithm called ant swarm algorithm जो कि ये बोलती है कि यार अगर आपको एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे पहुंचना है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ हाउस सो एंड यू वांट टू फाइंड फूड, सो नेचर में क्या होता है कि जो चींटियां होती हैं दे कैन नॉट कम्युनिकेट, राइट? बट अगर आप देखोगे तो यू ऑलवेज सी देम मूविंग इन द सेम लाइन, राइट? सो इट डज नॉट बिगिन लाइक दैट, दे मूव रैंडमली. लेकिन जब किसी एक को भी फूड मिल जाता है समहाउ 15 मिनट के अंदर सब की सब फूड ढूंढ लेते. सो हाउ डज इट वर्क? सो हाउ इट वर्क्स इज बेसिकली देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड फेरोमोन और समथिंग दैट दे एक्सक्रीट, राइट? एंड एज दे मूव on the floor they basically keep putting drops of pheromone. Okay, and then what happens is basically what they do is they go to the food, they pick the food and they come back to their home and then put the food, right? Yeah. So because all the ants are moving randomly, जैसे जैसे अगर मानो कि अगर आपका घर प्लेस ए पे है और आपका फूड प्लेस बी पे है, ए से बी जाने के 10 रास्ते हैं, राइट? लेकिन वन ऑफ देम इज द शॉर्टेस्ट वे, एंड सो जो शॉर्टेस्ट वे है जब उस रास्ते पे कोई भी चींटी चलेगी तो उसे वापस आने में कम टाइम लगेगा, राइट? एंड सो होता क्या है कि क्योंकि उसे कम टाइम लग रहा है तो वो चींटी ज्यादा फेरोमोन डिपॉजिट करेगी ओवर टाइम. तो बिकॉज ऑल द अदर एंड्स आर सेंसिंग द फेरोमोन एंड उनको ये पता है कि सबसे ज्यादा फेरोमोन की स्मेल कहाँ से आ रही है. सो ओवर टाइम जो सबसे yeah. So it is basically wisdom of crowd. So over time जहां पे सबसे ज्यादा फेरोमोन डिपॉजिट होगा सब चींटियां वहीं पे आने लगेंगी because they know कि this is the right way. Okay, interesting. Okay, I think very similar thing happens in stock market if we apply the correlation, right? अगर कहीं पे fundamentally कुछ हो रहा होगा तो think of us like the wisdom of crowd, right? So अगर आपको कोई चीज बहुत अच्छी मिलेगी तो आप सबसे पहले उसे दूसरे को जाके बताओगे या उसको खुद खरीदोगे? उसको आप सबसे पहले खुद खरीदोगे, राइट? उसके बाद दूसरे को बोलना शुरू करोगे, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी डू दीस थिंग्स वी लीव अ ट्रेल व्हिच इज सिमिलर टू व्हाट एंट्स डू, राइट? व्हिच बेसिकली इज द प्राइस एंड वॉल्यूम, राइट? एंड ओवर टाइम वो प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन एक्यूमुलेट होता है. जब और लोग देखते हैं कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ रही है, बहुत प्राइस एक्शन हो रहा है, तो वो लोग फंडामेंटली जाके उस चीज को पढ़ेंगे एंड और लोग आके खरीदेंगे, विच विल बेसिकली मेक द वॉल्यूम इवन हायर, राइट? बेसिकली व्हेन यू लुक एट दीज सिग्नल्स यू कैन यूज देम इन टू वेज. वन इज कि आप उस सिग्नल को देख करके, बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये सिग्नल देख के मुझे कुछ ये पता चलता है कि यार यहाँ पे कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है लेकिन मुझे पढ़ना है क्या हो रहा है, समथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग हियर, राइट? एंड समटाइम्स द अदर वे अराउंड आल्सो कि फंडामेंटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड देन आई लुक एट दोस सिग्नल्स कि यार इज इट शोइंग दोस ट्रेट्स, द विजडम ऑफ क्राउड, राइट? बिकॉज आई नो इट एक्यूमुलेट्स, राइट? सो दैट इज समथिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि यार नेचर से कैसे कोरिलेटेड है. That's amazing metaphor to understand this whole thing. So I think one more thing I wanted to talk about is another correlation that I always talk to people कि यार अगर आप पोकर खेलते हो, राइट? तो पोकर में क्या होता है कि आप ऑड्स को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हो, राइट? सो बेसिकली आप ये देखते हो कि अगर मेरे पत्ते कैसे हैं बाकियों के रिस्पेक्ट में मेरे पत्ते कैसे हैं, राइट? एंड इफ योर कार्ड्स आर रियली रियली गुड यू ट्राई टू डू गो ऑल इन और यू ट्राई टू पुट अ बिगर बेट, राइट? एंड पोकर में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि शुरू में आपको 3 पत्ते मिलते हैं लेकिन 2 राउंड्स में एक एक नया पत्ता खुलता है, एंड सो योर ऑड्स कीप चेंजिंग
basically as the cards open, right? Right. I think, right? And if Mhm. your cards are really, really good, you try to go all in, or you same thing happens with investing, right? Correct. The odds keep changing. So Keep that is changing. just fundamental investing, right? As Right. you get more information, you Mhm. basically try to position it appropriately, right? Correct. So not making a winning bet big is as bad as a mistake as making a wrong bet, is what Mhm. I have started to believe. So basically जो मैं बता रहा था कि Mhm. ant swarm algorithm, right? I think we can see it in stock market also. So very Right. recent example, for example, Kesoram Industries. I think Vax Ultratech acquired them. Yeah. So basically, if you look at this, right? So I don't know if you can see Yeah. this, Means- right? So look at the volumes, right? So the volumes were in September, October were hardly very. So look at these bars, right? They were very small, right? Right. And suddenly, out of random, right, the huge volume bars, which is like more than 10x of the previous bars, right, started Mhm. appearing, and the stock started moving up, right? Mhm. And then you see this red bar, yeah. So Mhm. one Right. day before this red bar, around 30th of November, so the Mhm. stock without for no reason went from 30. 72 to 150, almost doubled for no Doubled. reason. There was Right. no news. As a fundamental investor, you wouldn't even know कि यहाँ पे कुछ हो रहा है. But technical analysis में screeners में ये चीज आ गई थी. And Mhm. some people actually called me saying कि भाई इसमें क्या हो रहा है, right? एंड कुछ लोगों को शायद पता भी होगी इन्फॉर्मेशन. सम पीपल कॉल्ड मी सेइंग कि भाई कुछ बड़ा हो रहा है, चुपचाप ले लो. बट बिकॉज आई ऑलवेज यूज फंडा बिफोर टेक्निकल्स, आई डिड नॉट बाय. I could Okay. not figure out the reason what is going on, and suddenly one day Ultratech announced the merger, Right. and this price one day before the merger was priced to perfection to the merger ratio. Okay. Yeah, I mean, this is just one example of Kesoram, but I can give you many, many examples jahan pe, the news comes later and the action is already done. What is the first rule of that the traders use, right? Mhm. The first rule that the traders use is that, if a lot of action has already happened before Mhm. the news comes out, do not enter the trade, right? Okay. सो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, एज फंडामेंटल इन्वेस्टर्स, जैसे ही मर्जर अनाउंस हुआ, इस केस में तो खैर मर्जर रेशियो था, लेकिन Mhm. बहुत बार क्या होता है कि पॉजिटिव न्यूज आती है, राइट? सो आई Mhm. गिव यू अनदर एग्जांपल. सो देयर इज वन कंपनी कॉल्ड वैशाली फार्मा, Okay. right? So there was an announcement that was done, I think, around Feb 2023 or something. I remember very clearly the price around this time. The price was around 160 or so. Okay. So the news came around, I think, around here in February, mid of February. I very clearly remember the price was around 160 or so. Okay, Mhm. and the news was this company has won an order of 600 crores. Okay. Okay, the market cap of the company was hardly 130 140 crore or 150, I don't remember exactly, but बहुत छोटा market cap था. Mhm. And the revenue that it had done hardly is like every less than 100 crore in a year. Right. Okay, so it's a very small like 60 70 crore per year is what they do generally, right? Mhm. So what did I do? I looked at the fundamentals here. Historically, they have not done great. Mhm. Okay, they've got an order of 600 crores. Mhm. Next day, and it came, I think, during the market day or something, right? Mhm. So sometimes as a trader you want to, sometimes what traders do is, when, or a lot of investors, what they do is when such news comes, and by the way, what they had mentioned was कि this order has to be executed in next 6 to 8 months. 70 crore का revenue 600 crore जाने वाला है. It is a 10x story, right? Yeah. क्योंकि उसमें ढंग से पढ़ने का टाइम नहीं है कि पास्ट में इन्होंने कितनी अनाउंसमेंट्स करी हैं, पास्ट में क्या क्या हुआ है, मैनेजमेंट कैसी है, उतना तो टाइम नहीं है. Right. होगा क्या, एकदम से क्विक रिएक्शन लेते हैं लोग. Okay. एंड सो अगर ऐसा कोई ट्रेड भी लेना हो, सो लुक एट द प्राइस एक्शन आफ्टर दैट, राइट? तो आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर नेक्स्ट डे Mhm. ऐसी न्यूज पे ना 20% का अपर सर्किट लगना चाहिए, लगना चाहिए. ideally, हाँ, correct. right? If it is allowed. हाँ. If it is real, right? Yeah. Next day there was a red candle, right? So I'll talk Okay. about how to see candles and all, वो मैं आगे बात करूंगा. But basically a red candle next day makes no sense at all, right?
एंड देन फंडामेंटली यार जब उसको पढ़ना शुरू करा तो समझ में आया कि इनका तो एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट्स ही नहीं है, 2 करोड़ पे 600 करोड़ का कैसे सेल कर लेंगे, राइट? तो कुछ जादू बाद है। में पता चला कि so I think the technical analysis also saves you from these things. You get to know what is the market thinking. क्या मार्केट मेरी थिंग। thinking market के साथ aligned है या market के खिलाफ जा रहा हूँ मैं, right? Okay, So so that just is to summarize, I mean that's a learning. It's a good point which you brought. अगर fundamental analysis नहीं आती है, so you can just look at the candles. I mean, if it's red, then you have to be careful and maybe you look out to other stock. Maybe that is safer if you cannot look at fundamentally. But since you understand fundamentals, so you looked at and find out कि क्या reason हो सकता है जिसके कारण ये it's not a sound bet to take on. News based जो लोग trade करते हैं उनके लिए this is a savior in a way. yes. In fact, I'll tell you a few things later जो कि आपके बड़े लॉसेस होने ही नहीं देंगी. So अगर if you consider yourself an average fundamental investor, then the value of technical analysis goes up a lot, right? Right. अगर आप ये यूज करोगे तो अगर आप अपने आप को ये समझते हो कि नो एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर आई एम वेरी वेरी स्ट्रांग, आई एम एबल टू कीप अप विद एवरीथिंग, मैं सारी न्यूज ट्रैक कर सकता हूँ, मैं डॉट्स को कनेक्ट कर सकता हूँ, यू नो, देन प्रोबेबली यू शुड गिव लेसर वेटेज टू टेक्निकल एनालिसिस. लेकिन अगर आप ऐसे हो जो कि थोड़ा भी आपको अपने ऊपर डाउट है इन फंडामेंटल एनालिसिस, देन आई वुड से कि प्लीज गिव मोर वेटेज टू टेक्निकल एनालिसिस. एटलीस्ट यू वुड नो व्हाट द मार्केट इज थिंकिंग एंड द मार्केट इज नॉट स्टूपिड. It is, you can say in 2-3%, 5% of the times market may be wrong, but 95% of the times market is right. Market will do the right thing. जिसको वैल्यू देनी चाहिए उसी को वैल्यू देगा, जिसको गिराना चाहिए उसी को गिराएगा, right? So the wisdom of the crowd helps you save a lot of money. So far I've just talked about briefly why you should learn technical analysis. Now I will teach you, I will talk about how to do technical analysis. And I'm not a very high-fi technical analysis trader or anything. I'm nothing of that. I use very very basic technical analysis. जो भी ये पैटर्न्स होते हैं, ये हेड एंड शोल्डर, ये वो, मतलब मुझे तो ज्यादा पता भी नहीं है. अगर आप कैंडल्स की भी बात करोगे तो 50 तरीके की कैंडल्स बना देंगे, फॉलिंग नाइफ एंड स्टार फिश, आई डोंट नो, बहुत सारी होती है. आई डू नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दैट. लेकिन मैं एक बेसिक समझ रखता हूँ इतनी कि मेरे को ब्लंडर करने से बचा सके, राइट? एंड मुझे लगता है कि एज ए फंडामेंटल इन्वेस्टर आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर मी एंड आई डू नॉट वांट टू लर्न मोर देन दिस. व्हाई? बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि मैं बहुत ज्यादा चर्न करने लगूंगा एंड आई विल गो इनटू दैट ट्रेडर माइंडसेट. आई डू नॉट वांट टू गो इनटू द ट्रेडर माइंडसेट. आई स्टिल वांट टू बी एन इन्वेस्टर who is just picking some things out of the hat of a trader. So the basics is there are two types of candles. One is a green candle and a red candle, right? So what is the basic difference between a green and a red candle? So अगर आपका मार्केट खुला है, मानो अगर आपका रिलायंस का शेयर 2000 रुपए का है, right? When the market opens, the first tick that happens, राइट? अगर 2000 रुपए पे पिछला क्लोजिंग हुआ था, कल रात को 2000 पे क्लोज हुआ था कल, एंड आज इट ओपन एट लेट्स से 2050. ओके, सो दैट बिकम्स योर ओपन, राइट? एंड देन इस आज के दिन जब वो क्लोजिंग होगा, अगर मानो इट क्लोज्ड एट 2200, सो दैट बिकम्स योर क्लोज. अब इस बीच में ड्यूरिंग द डे इट विल कीप फ्लक्चुएटिंग. कभी वो वापस 2000 जाएगा, कभी वो वापस 2050 जाएगा, कभी 2100 जाएगा. It will keep fluctuating, right? But at any point of time when the market opened, if that is lower than the current value, right, then the candle is green. Okay? And vice versa. अगर जो क्लोजिंग हो रही है या जो करंट वैल्यू है वो लेस देन ओपन वैल्यू है, then the candle is red. Okay, so that is the difference between a green and a red candle. Okay, and that works on across all kind of time horizon, like 50 minutes की candle में भी the same logic applies. Yes, same logic, same. Even 1 minute की candle में भी same logic है. अगर 1 minute में जो open tick हुआ है first second पे, that is smaller than the the closing tick, then the candle is green. And अगर closing वाला जो value है that is lesser than the opening value, then the candle is red. तो आप ड्यूरेशन आप चाहे उसे 15 मिनट कर लो, चाहे 1 घंटा कर लो, चाहे 1 वीक कर लो, चाहे 1 मंथ भी होता है. 1 मंथ का भी एक डेटा पॉइंट हो सकता है. तो अगर ओपनिंग ऑफ द मंथ और क्लोजिंग ऑफ द मंथ में पॉजिटिव है तो ग्रीन, अगर नेगेटिव है तो रेड. ओके, देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ विक.
ओके, विक का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द डे उस बीच में ऊपर नीचे गया होगा, राइट? कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जो हाईएस्ट होगी। अगर मानो कि रिलायंस की एग्जांपल लूं, कमिंग बैक कि 2000 पे ओपन हुआ, लेकिन सम टाइम ड्यूरिंग द डे इट वेंट टू 2500, राइट? राइट, सो देन द हाई बिकम्स 2500। Right. सो अच्छा, एक चीज होती है इसकी बॉडी एंड एक होती है विक। सो बॉडी जो रिप्रेजेंट करती है वो ओपन और क्लोज को रिप्रेजेंट करती है, एंड विक जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि ड्यूरिंग द डे उसके बीच में कुछ ना कुछ हाई बनाया होगा और कुछ ना कुछ लो बनाया होगा। तो वो जो विक है वो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। अगर अगर ये जो कैंडल है उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा पतली है, राइट, बहुत ही ज्यादा पतली, इसमें तो जैसे मोटी है, अगर मानिए ग्रीन पोर्शन बहुत ही ज्यादा पतला होता और ऊपर भी बहुत लंबी विक होती और नीचे भी बहुत लंबी विक होती, तो इसका साइकोलॉजिकली क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब ये, द बाइंग प्रेशर एंड द सेलिंग प्रेशर इज इक्वल। अगर बायर्स उसको ऊपर लेके जा रहे हैं लेकिन सेलर उसे वापस नीचे गिरा दे रहे हैं, जिस प्राइस पे ओपन हुआ है उसी प्राइस पे क्लोज हो रहा है। ओके, सो दिस फाइट बिटवीन बियर एंड बुल्स। अगर मैं इसको प्रोसेस करूं इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सो इसका मतलब मार्केट किसी एक चीज को लेकर के डिसाइड नहीं कर पा रही है इन अ वे, सो इनडिसाइसिव। एग्जैक्टली, इनडिसाइसिवली डिसाइड नहीं कर पा रही है। अगर काफी बार क्या होता है ना, बिना विक की कैंडल होती है, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी है और विक है ही नहीं, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा तब होता है जैसे मानो कि ओपन हुआ 100 रुपए पे और 20% का सर्किट लग गया, 120 पे क्लोज हुआ और बीच में कुछ फ्लक्चुएशन ही नहीं आया, सारे के सारे ऑर्डर 120 पे एग्जीक्यूट हुए, होता है, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट इज वन साइडेड, द बुल्स आर टेकिंग ओवर द बेयर्स, राइट? तो अगर बॉडी ग्रीन है और जितना बड़ा ग्रीन है, इसका मतलब यह है कि बुल्स उतने ज्यादा हावी हैं, जितनी छोटी विक है, ओके? एंड सिमिलरली जितनी बड़ी रेड कैंडल है, इसका मतलब यह है कि बेयर्स हावी हैं। तो यानी कि जब ओपन हुआ तो काफी हाई वैल्यू पे हुआ, लेकिन सस्टेन ही नहीं कर पाया, बेयर्स ने आके जो है उसे पूरा नीचे कर दिया एंड क्लोजिंग पूरी की पूरी रेड हुई है। बेसिकली मींस बिग बॉडी बट पूरी की पूरी रेड, तो बेयर्स आर हावी, ओके? सो दैट इज जस्ट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू लुक एट कैंडल्स। सो नाउ एक और कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड कि हर कोई बात करता है कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, राइट? सो आई वांट टू टॉक अबाउट कि यार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सेंस बनाता है या नहीं बनाता है? क्या ऐसी रैंडम लाइनें खींचने से क्या एक्चुअली में कुछ फर्क पड़ता है? क्या मार्केट, क्या स्टॉक उसे फॉलो करेगा? क्या वहीं पे आके रुकेगा? अच्छा, उसका आंसर ये है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है और कहां से आया, राइट? तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्यों वर्क करता है। ये एक्चुअली में वर्क करता है, 100% ऑफ द टाइम्स नहीं वर्क करता है। आप ऐसे समझो कि अगर वैल्यू एक्स है, राइट? अगर वो एक्स एक रैंडम वैल्यू है, तो अगर वहां से गिरने की प्रोबेबिलिटी और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है, तो अगर आप एक रेजिस्टेंस जोन में हो तो प्रोबेबिलिटी शायद 80-20 होगी गिरने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस है। बट आप ये नहीं कह सकते कि 100% प्रोबेबिलिटी है कि यहां से गिरेगा ही गिरेगा। बट थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कि यार यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो मोस्ट लाइकली देयर इज अ 80% चांस इट माइट फॉल। दैट्स हाउ यू शुड थिंक अबाउट इट। ओके, सो लेट मी जस्ट ओपन एन एग्जांपल। MCX का एग्जांपल खोल रहा हूँ। सो आई हैव अ फ्यू एग्जांपल्स, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट इससे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज ये होती है कि फॉर एग्जांपल लुक एट हेयर, राइट? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो स्टॉक है ना, आपको ये चार्ट दिख रहा है? हाँ, राइट? सो दिस इज अ डेली चार्ट, राइट? सो ये MCX का स्टॉक है। सो आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ फंडामेंटल थीसिस यार। तो इसमें आई स्टडीड इट एंड देन आई लुक्ड एट द चार्ट्स। सो MCX में हो क्या रहा था कि इनका जो सॉफ्टवेयर था वो आई थिंक मून टेक्नोलॉजीज, राइट, उन्होंने डेवलप किया था, एंड वो जो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर होने वाला था, एंड दे 1-2 सालों से, ये 2-3 सालों से TCS के साथ काम कर रहे थे कि यार हमारा सॉफ्टवेयर बना दो, ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म बना दो, एंड वो पिछले 2 सालों से डिले हो रहा था। एंड फाइनली अराउंड दिस टाइम, अच्छा यहाँ पे ना वो प्लेटफॉर्म लाइव आने वाला था, लेकिन वो लाइव आ नहीं पाया था और ज्यादा इश्यूज आ रहे थे, वो डिले हो रहा था। फाइनली वो प्लेटफॉर्म लाइव आ गया। अच्छा, उसमें होने क्या वाला था कि ये इस बीच में 63 मून्स को ये समझ में आ गया था कि हम इनसे जो भी चार्ज करेंगे वो देंगे, क्योंकि एनीवेज ये कस्टमर तो हमारे हाथ से निकल ही रहा है, एंड इन्होंने अनाप शनाप प्राइजेस चार्ज करने शुरू कर दिए थे MCX के साथ। एंड सो
अच्छा वो आई थिंक और ऑलमोस्ट 1 ईयर से डिले हो गया था, और जैसे ही वो लाइव आया तो ये आप ब्रेकआउट देख रहे हो, ये ब्रेकआउट आया है, एंड वी नो कि उसके बाद स्टॉक का क्या हुआ है, राइट? सो आई वाज लुकिंग एट दिस स्टोरी सिंस 2021, राइट? सो ये जो प्लेटफॉर्म है ये तब से बन रहा है। आई इनफैक्ट क्रिएटेड अ वीडियो अराउंड दैट टाइम एमसीएक्स के बारे में। आई वाज टॉकिंग अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट? सो अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट क्या होता है, पहले वो बताता हूँ। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे प्राइस उसके नीचे नहीं जा रही है, एंड समहाउ वहां से वापस से स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है। सो सपोर्ट इज अ प्राइस पॉइंट बिलो विच द करंट मार्केट प्राइस दैट इंडिकेट्स बाइंग इंटरेस्ट, कि उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट है। Something for a long term investor, which is Sadhan mentorship program, somebody who wants to learn, not for the heck of making money, but for learning, for making out big in the long term, not just that short term की strategy sharing नहीं होती इसमें। Actually how to do investment is what I have learned over last 10 years by reading to Warren Buffett, Charlie Munger and Phil Fishers of the world. And then I kind of I applied it in India since 2015 to 2024. So 9 years of applications and 5 years of deep learning, as well as my 10-12 years of experience into markets, particularly into financial market. I worked in ICICI Bank and L&T Infrastructure Finance and all those companies, and Tata Motors. So I have those industrial angle to it. So that helps me deriving something good at a business fundamental level and at financial analyst level, and that's I try to impart with in the form of a investment framework. So over live classes, over weekend, around 25 plus live classes के through मैं उसमें बताता हूँ कि क्या है investing, it's an art or science, or how to go about it. It's not that क्या है, it's how to do it. It's more of I share my excels जो कि काम बिल्कुल ही आसान कर देते हैं आपका। 5 मिनट में आपकी एनालिसिस हो जाती है। मोड कैलकुलेटर 2 मिनट में काम करता है। साधन ROIC शिफ्ट फ्रेमवर्क इज ऑल्सो एडवांस टूल विच हेल्प्स यू गेन की कंपनी कहाँ जा रही है डायरेक्शनली। And these things are shared. These are the tools which help somebody make wiser decisions. And I also share recorded videos and complete access of learning management system. So obviously many things which I keep dabbling into, I keep sharing there, and they also help me in research also. Sometimes it's a more of a assignment based classroom also. So I keep asking them questions, what you learned, what you did not, and they engage with the content which I share there. And I share everything which I learned in last 10 years, and so that people can develop their sustainable investment framework. एंड रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ पॉइंट जहां पे उस प्राइस के ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये बार बार ना इस पॉइंट को टच कर रहा है 1138 के आसपास, और फिर वापस बाउंस बैक कर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर इसे टच कर रहा है, फिर बाउंस बैक कर जा रहा है, फिर यहाँ पे इसी पॉइंट पे रिवर्स करा, फिर यहाँ पे वापस आया, इसी पॉइंट पे रिवर्स करा, राइट? एंड उसके बाद वो वापस इस पॉइंट पे नहीं आया, बट समहाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। एंड बाय द वे सपोर्ट इज ऑलवेज अ जोन, इट इज नॉट अ पॉइंट। लाइक ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू को आप बोल सकते हो कि एग्जैक्टली 1150 है सपोर्ट। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इट इज अ रेंज। तो आप बोल सकते हो कि 1100 से 1150 इज अ सपोर्ट जोन, राइट? इस जोन में इट इज सिमिलरली देयर इज अ रेजिस्टेंस जोन। सो यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस, अच्छा ये एग्जैक्ट नहीं होता। सो इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पे इट इज टचिंग दिस पॉइंट एंड देन अगेन फॉलिंग। सो दिस इज द रेजिस्टेंस जोन। तो यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस आया, यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस कैंडल, यहाँ पे टच होके ऑलमोस्ट वापस लौटा यहाँ पे। सो अगेन 3 टाइम, again around here it is the same point, right? Even very recently it showed some resistance at this line, right? So this is the resistance zone. अच्छा, now coming back to the point कि ये support और resistance का concept क्या है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन ये वर्क क्यों करता है? So think of it like this: an uninformed investor, right? How would an uninformed investor behave in the market? अगर आपने कोई चीज 100 पे खरीदा है एंड वो आपके खरीदते ही ना वो गिर रहा है, आपने गिरते हुए खरीदा एंड वो गिर गिर के 80 पे आ गया, राइट? एंड अगले 2 सालों तक वो 70-80 के बीच में घूमता रहा और अचानक से वापस 80 पे आया, वापस जो है वो वैल्यू 100 पे आई है, आपके बाइंग प्राइस पे आई है 2 साल के बाद। आप क्या करोगे? व्हाट वुड ए नॉर्मल इन्वेस्टर डू? वो बोलेगा यार ये तो बहुत ही कचरा स्टॉक है, मैं कब से इसका वेट कर रहा हूँ, फाइनली मेरी बाइंग प्राइस पे आया है, निकल चलते इसको निकाल देते हैं, राइट? सो इसीलिए क्या होता है कि पास्ट में जो रेजिस्टेंस बनता है, पास्ट में जहां पे टॉप बनता है, टॉप, अच्छा एक चीज और होती है, टॉप पे ना सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं,
जब स्टॉक टॉप पे होता है तो वो एक यूफोरिक लेवल्स होते हैं, मतलब वहां पे यूफोरिया होता है एंड जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर होता है वो बेच देता है और एक ज्यादा काफी सारे लोग फंस जाते हैं। अच्छा, मतलब ऑब्वियसली डिमांड और सप्लाई की बात है कि बहुत सारे जब बहुत ज्यादा लोग एग्जिट करते हैं उतने ही लोग एंटर करते हैं एंड सो द प्राइस डज नॉट राइज इवन दो अ लॉट ऑफ सेलिंग एंड बाइंग इज हैपनिंग, द प्राइस डज नॉट राइज। लेकिन बहुत सारे लोग टॉप पे सबसे ज्यादा लोग स्टक होते हैं। अगर आप कोई भी चार्ट उठा के देखोगे टॉप पे वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट होगा जनरली, सो दैट इज वन थिंग। और जब वो प्राइस वापस आती है तो अचानक से सेलिंग प्रेशर आने लगता है क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं वो वापस बेचना शुरू कर देते हैं। करेक्ट, राइट। एंड सिमिलरली जब जब बाइंग की बात करी जाती है, अगर मानो कोई स्टॉक मानो कि 500 से गिर गिर के 100 पे आ गया एंड नाउ इट हैज अ डीप वैल्यू, somehow it has deep value, right? And then what will happen is deep value investors will start investing in that stock, and generally how it works is they will think of a level in their mind कि यार मैं 100 पे ही खरीदूंगा, एंड काफी लोग जीटीटी डाल के छोड़ देंगे, काफी लोग ऑर्डर डाल के छोड़ देंगे, या देखेंगे कि मैं भाई 90-100 के बीच में खरीदूंगा। अब वो 100 से 120 जाता है, जैसे ही वो 100 पे आता है ना, वो they will do another top up, so that is what actually happens and so वहां पे अचानक से बाइंग आती है, सो दैट बिकम्स अ सपोर्ट जोन, अ हाई सपोर्ट जोन, क्योंकि एज इट रीचेस दैट वैल्यू इमर्जेस, वैल्यू इन्वेस्टर्स कम इन, दे बेसिकली बाय एंड देन अगेन इट टेक्स अ सपोर्ट एंड बाउंसेस बैक। अच्छा, इसका उल्टा भी होता है। इसका उल्टा का क्या मतलब है, अगर कोई लेवल रेजिस्टेंस है तो फॉर एग्जांपल ये जो लेवल है, ये दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, अब यहाँ पे इसके ऊपर निकल गया, राइट, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड अ ब्रेकआउट प्रैक्टिकली, कि जब यार यहाँ पर जैसे इस लेवल पे आया, जो लोग फंसे हुए थे उन्होंने बेचा, फिर दोबारा इस लेवल पे आया, फिर जो लोग फंसे हुए थे फिर बेचा, ऐसा वो मल्टीपल बार करेंगे एंड ठीक ठाक क्वांटिटी से करेंगे, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब पूरे के पूरे हैंड्स चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब है जो वीक हैंड्स हैं, ऐसे लोग जिन्हें फंडामेंटल इंप्रूवमेंट का आइडिया नहीं है, वो बेचेंगे एंड ओवर द 6 मंथ 1 ईयर पीरियड धीरे धीरे वो लोग बेच के अपना जितनी सप्लाई है वो खाली कर देंगे एंड देन वो लेवल, जब वो सप्लाई खाली हो जाएगी, जब दोबारा से वो उस पॉइंट पे आएगा, उस टाइम पे देयर विल बी लेस नंबर ऑफ सेलर्स, क्योंकि ऑलरेडी उनकी सप्लाई खाली हो चुकी है। एंड सो दिस टाइम व्हेन इट गोज अबव इट, राइट, there are no sellers, and so even with less volume the stock will keep rising because buying interest है लेकिन seller exhaust हो चुके हैं, but it is a slow process, it takes a lot of time and it basically will feel multiple resistance, and whenever there is a breakout then it goes in a free zone जहां पे कोई resistance नहीं है, जहां पे कोई overhead supply नहीं है, लोग फंसे हुए नहीं हैं, and so the stock starts moving upwards in a free zone. Okay. And actually it will attract new investors, new buyers. So new history will be deleted. Exactly. For a moment you can say that history doesn't matter. But for over a long period of time, if it has to crash back, then we'll think that it will stop at the previous resistance. So yes, so that is what technical analysis says. It says there is role reversal. तो जैसे ही ब्रेकआउट आता है, ये जो पॉइंट रेजिस्टेंस बन रहा था, it becomes a support. And you know why it will happen, right? Because इस point पे the hands have changed at, अब जो लोग इस point पे खरीद रहे थे पहले, उनके लिए ये sell point था, अब जो नए buyers आए हैं उनके लिए ये buy point है। एंड सो जब ये अगर मानो ऊपर जाके वापस इस पॉइंट पे आएगा, वो इस पॉइंट पे वापस से खरीदेंगे, दे विल डू देयर टॉप अप्स, राइट? एंड सो दिस इज कॉल्ड अ पुल बैक। सो आफ्टर द ब्रेकआउट, जब उस लेवल पे वापस, इसमें तो जैसे पुल बैक हुआ नहीं ज्यादा, थोड़ा सा ही हुआ है, इफ यू सी दिस देयर इज स्लाइट पुल बैक एंड देन अगेन इट बाउंस्ड अप, बट काफी बार क्या होता है कि 10-20% ऊपर जाने के बाद देयर इज अ पुल बैक ऑफ 10% एंड देन इस लेवल वापस जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन जाता है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रोल रिवर्सल। आफ्टर अ ब्रेकआउट रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट एंड वाइस वर्सा आल्सो, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट था, अगर समहाउ ये स्टॉक कोई नेगेटिव न्यूज आ जाता और इस पॉइंट को क्रैश करके नीचे आ जाता है, ऐसे नीचे की साइड आ जाता, देन ये जो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, इट बिकम्स अ रेजिस्टेंस। तो इस पॉइंट को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाएगा, राइट? सो वी कैन सी इट इन पेटीएम फॉर एग्जांपल।
मतलब Okay. I have not looked at the chart in the past, but I feel it might follow something Okay. like that. So yeah, actually it is following like that, right? So look at this black line, right? I will talk about moving averages later. So how moving averages also become supports and resistance, उसके बारे में बाद में बात करूंगा. Mhm. But ये जो negative news आई थी, there was a gap down, Mhm. right? It crashed. Mhm. Somehow there was a recovery, but ये जो point है black line, that is the 200-day moving average. उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा. But moving averages act as supports and resistance, Mhm. right? So ये which was earlier acting as support now became resistance, and so exactly at 200-day moving average, it started going down again. Okay, so whatever is the support becomes resistance, and whatever is the resistance becomes support. अगर ब्रेक आउट हुआ यानी कि उसको ऊपर की तरफ तोड़ा, तो जो भी रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा. ब्रेक डाउन हुआ, नीचे की तरफ तोड़ दिया, तो जो सपोर्ट का एक्ट कर रहा था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा. So that is the basic concept of technical analysis. Any questions so far? No, you explained it so well that it's crystal clear. Thank you. Okay. So let me give you an example. For example, मैं आप स्नाइडर का ही चार्ट देख लो. समथिंग दैट इज हाई फ्लाइंग दीज डेज. सो अगर आप देखोगे पास्ट में, मतलब देखो डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं बता रहा था कि जो ब्लैक लाइन है ना, दिस इज द 200-day मूविंग एवरेज. इट एक्ट्स एज बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो इफ यू लुक एट दिस, इट इज so let's go back and let's look at weekly charts. So ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. So look at this. So यहाँ पे 200-day मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था मामला पूरा का पूरा. ठीक है. दिस इज 2015. Okay. Something bad happened here. Something bad happened here. It crashed and came down below the 200-day moving average. Right. So far this 200-day moving average के ऊपर ही चल रहा था सब कुछ. अच्छा, मूविंग एवरेज क्या होते हैं वो सब मैं आगे बताऊंगा, बट थिंक ऑफ इट समथिंग लाइक एन इमेजिनरी लाइन जो कि इसके स्टॉक के साथ साथ चलती है. एंड ये बिकम्स इसके ऊपर सब कुछ है तो एवरीथिंग इज गुड, एंड इसके नीचे सब कुछ है देन एवरीथिंग इज बैड अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस. ओके, सो नॉट जस्ट टेक्निकल एनालिसिस, लुक एट एनी कंपनी, एनी स्टॉक. आपका पैसा नहीं बन सकता अगर स्टॉक 200-day मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, और आपका मोटा पैसा बनेगा अगर स्टॉक अपने 200-day मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है. राइट. So whenever the stock is downtrending, the black line is above the stock. Whenever the stock is uptrending, the black line is below the stock. Okay. So this is basically a measure of trend. So the black line is the measure of trend. Okay. Nice. So something bad happened here with big volumes. Look at the red candle. It has huge volumes compared to the past volumes, right? इतने ज्यादा volumes नहीं थे एक साल पहले. उसके कंपैरेटिवली 10-20 गुना वॉल्यूम्स हैं. यहाँ पे ये क्रैश करके नीचे आया, फर्स्ट रेड सिग्नल इसके नीचे आ गया, एंड देन दिस इज एक्टिंग एज रेजिस्टेंस. इस ब्लैक लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहा है. अगर कर रहा है तो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वापस गिर जा रहा है. सो लुक एट दिस. इट इज टचिंग द ब्लैक लाइन अगेन फॉलिंग, टचिंग द ब्लैक लाइन अगेन फॉलिंग. हियर टच्ड अगेन फेल. राइट. So multiple times, again. So it is basically not able to decisively cross this black line. And somehow something happened here. Do you see something happened here? Look at these bars below it. क्योंकि छोटी bars हैं. And this is not a small period. This is a period of 5 years, right? 5 years, nothing happened. After 5 years, something fundamentally must have changed, and we all know what happened, right? We know कि यार fundamentally all the government started focusing on green energy, and this became a big beneficiary. Right. Look at these lines, the volume lines. Suddenly huge volume lines. This is a breakout, and then next we see this black line is acting as a support. Black line इसके नीचे आ गई, chart इसके ऊपर आ गया, and every time it is touching this, it is bouncing back. Look at this. So it touched it here, bounced back. It touched it here, bounced back. And पूरी उसकी अब आप देख लो पिछले 2 साल में, it never went below the black line. It is every time it is touching this black line, and the chart is so strong it is not even coming close to the black line, right? This was just an example to show the support and resistance. आगे बहुत सारे charts हैं, मैं डिटेल में बात करूंगा. So what does it signify? It signifies demand supply, change of hands, weak versus strong hands. I think already talked about it. There are 2 types of support. One is trend line support, and one is the moving average support. Okay. Achha, can you elaborate on this trend line support? Yeah, please. So
ट्रेंड लाइन सपोर्ट में क्या होता है, यू बेसिकली ट्राई टू सी द ट्रेंड बाय ड्रॉइंग अ लाइन, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम श्नाइडर की बात करें, राइट, इवन दो इट इज इन अ डाउन ट्रेंड, आप क्या करते हो, इसके टॉप्स को कनेक्ट करते हो। अच्छा, अगर फॉल नीचे की तरफ गिर रहा है तो आप टॉप्स कनेक्ट करते हो, ठीक है, एंड यू ट्राई टू मेक अ लाइन जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कनेक्ट हो सके। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इसमें एक ये टॉप कनेक्ट हो रहा है, ये टॉप कनेक्ट हो रहा है, यहाँ 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 यहाँ। सो ये ना, इट इज एन आर्ट, मोर ऑफ एन इंटरप्रिटेशन। कुछ लोग ऐसी लाइन बनाएंगे, कुछ लोग शायद ऐसी लाइन बनाएं, राइट, डिपेंडिंग ऑन। बट लेट्स सी, एक एग्जांपल के तौर पे लेट्स सी, दिस इज समथिंग यू नो दैट बेसिकली ट्राइज टू कैप्चर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, राइट, राइट। सो कुछ लोग क्या करते हैं कि ट्रेंड लाइन के बेसिस पे फॉलो करते हैं, एंड कुछ लोग ये जो लाइन है मूविंग एवरेज ब्लैक लाइन जो देख रहे हो, कुछ लोग ये फॉलो करते हैं। Okay. But more or less it kind of tries to tell the same thing. अच्छा, अब I'll also talk about what is this black line. It is a moving average. Basically, moving average का मतलब ये है कि जो भी प्राइस है, every day there is a stock price, right? You basically do a average of last X data points. So this is the 200-day moving average, which basically means कि आज से लेके मैं पिछले 200 दिन के स्टॉक प्राइस लूंगा। अच्छा, 200 क्यों? 200 इसलिए क्योंकि मार्केट में हॉलीडेज भी होती हैं, सैटरडे संडे बंद होता है, तो 200 कैंडल रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट 1 ईयर, मोर और लेस, राइट? सो आज से लेके मैं पिछले 1 साल के एवरेज पॉइंट ले रहा हूँ, एवरेज वैल्यू ले रहा हूँ, एंड आई एम प्लॉटिंग इट एवरी डे। सो एवरी डे जो 200 यानी 1 साल पुरानी जो डॉट 1 साल पुरानी प्राइस होगी, वो इससे बाहर हो जाएगी और नई प्राइस ऐड हो जाएगी इस इंडिकेटर में। ओके, ओके, एंड फिर मैं 200 दिन के एवरेज को प्लॉट कर रहा हूँ। So just an add-on, I mean, just to conclude one thing, that as a fundamental analyst, we always look at the year-on-year comparison. So since we are built to look at things annually, that's why it makes sense to have a 200 DMA rather than 50 DMA. Yes. No, 50 also makes sense. 50, but quarterly कर रहे हैं, हाँ, तो yes. So 50 almost is a, if you look at almost एक क्वार्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर क्वार्टरली लेवल पे देखना है तो 50, ईयरली लेवल पे देखना है तो 200 डे मूविंग एवरेज, राइट? इसमें भी 2 तरीके की होती हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। But let's not go into too much technical, but more or less this is the concept. I use both of them. I use more simple moving average. I do not try to do a lot of technical stuff, but एक basic understanding के लिए यूज करता हूँ कि यार, अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि अच्छा, मार्केट में 2 तरीके के लोग हैं, एक है ट्रेडर और एक इन्वेस्टर, राइट? मोटा पैसा कब बनता है? मोटा पैसा तब बनता है जब ट्रेडर के लिए भी वो चीज बेनिफिशियल हो और इन्वेस्टर के लिए भी बेनिफिशियल हो। अगर इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल है लेकिन चार्ट बहुत ही ज्यादा खराब है, तो ट्रेडर उसकी पिटाई करेगा, राइट? अगर ट्रेडर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है लेकिन कंपनी कचरा है, इन द सेंस कि तो इन्वेस्टर पिटाई करेगा, राइट? कंपनी का प्रोस्पेक्ट अच्छा नहीं है, अगर फर्जी में ही ऊपर जा रही है, तो आई थिंक आपका मोटा पैसा कब बनेगा? जब दोनों अग्री करेंगे। तो आई थिंक दैट इज व्हेन यू हैव टू पुट योर मैक्सिमम एलोकेशन, यानी कि आपको ये भी दिख रहा है कि फंडामेंटली दिस इज अ 3x स्टोरी, राइट? लेकिन मार्केट वैल्यू ही नहीं दे रहा, तो फिर आप एलोकेशन 10% मत करो। अगर आपको ये दिख रहा है यार, फंडामेंटली इट लुक्स लाइक अ 3x स्टोरी एंड टेक्निकली इट लुक्स सो गुड दैट एवरी ट्रेडर वुड वांट टू एंटर दिस स्टॉक, then make it a big position, 15%, 20% position. Don't make it a 2% position, right? That is the whole concept. So there are 2 types of support: trend line support, moving average support. 2 types of moving average: simple moving average, exponential moving average, SMA and EMA. So exponential moving average में क्या होता है? जो current data point है उसका higher weightage होता है, जो पुराना data point है उसका कम weightage होता है, but concept is the same. So just I want to give one example. For example, the index. So ये जो concept है, it remains same on stocks, indexes, economies, whatever, like any chart, commodity, doesn't matter, क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई को गॉज करने की कोशिश करता है। सो इट डजंट मैटर कि किस चीज का चार्ट है। तो जैसे मैं BSE स्मॉल कैप इंडेक्स पे सेम चीज लगा के दिखाता हूँ आपको। आप ये देखो, इसमें 2018 से लेके 2020 तक सबको पता है कि बहुत ही ज्यादा खराब टाइम था इंडेक्स स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के लिए, राइट? दिस चार्ट नेवर, और इट डिड क्रॉस हेयर, बट बिफोर दिस इट नेवर क्रॉस्ड द ब्लैक लाइन। Black line. Okay, so
अगर एक ट्रेडर के लिए आप देखोगे, इट इज अ वेरी वेरी नेगेटिव थिंग. Negative. ट्रेडर विल नेवर इन्वेस्ट समथिंग विच इज बिलो 200-day मूविंग एवरेज. ओके, सो क्लियरली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप स्मॉल कैप्स से बिल्कुल दूर रहोगे इस पूरे पीरियड में, राइट? समथिंग हैपेंड हियर व्हिच इज around 2019 Feb में the valuations became juicy and it gave a breakout in 2019 only. I'm not talking about COVID. अच्छा, उससे just one पहले year. ही ब्रेकआउट आ गया था, लेकिन सडनली कोविड स्टक एंड देन एवरीथिंग फेल. बट क्योंकि इस टाइम तक वैल्यूएशंस इतने जूसी हो चुके थे पिछले 3-4 साल के 50-60% फॉल के बाद, कि सून आफ्टर अगेन ब्रेकआउट आ गया, राइट? अगेन इट वेंट अबव द ब्लैक लाइन एंड देन लुक एट द ट्रेंड ऑफ द ब्लैक लाइन. अगर ये ब्लैक लाइन इज अप ट्रेंडिंग, that basically means it is good to enter for a trader. If it is downtrending, it is bad to enter. Okay, so it was always downtrending between 2018 to 2020, and then the trend became flat, and then it started rising, right? Then this was the first breakout point, right? But acha, I was talking about supply, high supply zones, right? So जहां पर भी पुराने tops बने हैं, they become high supply zones. यहाँ पे लोग फंसे हैं, right? So what are the high supply zones? This is the high supply zone. This one. Right. This is another high supply zone. This is a high supply zone, or you can say a resistance. This is another resistance. This is another resistance. जहां जहां पे टॉप बने. तो this was one breakout, but जैसे ही ये जो पॉइंट है ये बहुत क्रिटिकल था, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ये 3 बार आके अटका था. यहाँ पे अटका, ये यहाँ पे भी कुछ अटका, यहाँ पे अटका, फिर इधर अटका और इधर अटका इस पॉइंट पे, राइट? तो जब इसने ये वाला पॉइंट तोड़ दिया ऊपर की तरफ, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. लुक एट द चार्ट्स, वन वे रैली, राइट? ओके, एंड देन वी ऑल नो कि यार कोविड के बाद स्मॉल कैप्स में क्या हुआ था, एंड देन it never crossed the black line, which basically means there was no exit signal for traders. And then around 2021 we all know कि market peak हो गया था, right? And then it gave a breakdown again, it came below the black line, right? But ये ना इस पॉइंट पे आके अटकने लगा, and then this became a high supply zone. तो एक बार अटका, 2 बार अटका, 3 बार अटका. Then even though ये ब्लैक लाइन के ऊपर आ रहा है, यानी कि ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन ये हाई सप्लाई जोन को क्रॉस नहीं कर पा रहा. यहाँ अटका, फिर अटका. बट समहाउ 1, 2, 3, 4, 5 बार अटकने के बाद जून ऑफ 2023 में ना इसे ब्रेकआउट दे दिया. इस रेंज को किसी तरीके से वो क्रॉस कर गया. एंड देन वी ऑल नो कि सप्लाई पूरी खत्म हो गई, जो इनको बेचना था वो बेच गए. एंड देन अगेन अ वन वे रैली, राइट? सो आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि आप चार्ट देख के पूरा सब काम करो, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा अगर आपको आइडिया होगा, यू एटलीस्ट नो कि व्हेन टू बी अग्रेसिव इन द मार्केट एंड व्हेन टू बी स्लाइटली defensive. what do we call defensive, right? So that is one thing. So this is on an index level also we can have a view before getting Actually deep it into goes this. from top to down. So you never start from the, so जो traders होते हैं they always start from top to down. Basically they look at पहले इकोनॉमी कैसा कर रही है, इंडेक्स कैसा कर रहा है. अगर इंडेक्स सेल जोन में है देन दे विल नॉट बी अग्रेसिव इन स्टॉक पिकिंग, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम कुछ बहुत अच्छा चूज भी करेंगे तो मतलब इवन इफ द स्टॉक इज गिविंग ब्रेकआउट्स, they know that it will not sustain because the market is not conducive. Okay. अच्छा, एक चीज और है, बहुत ज्यादा गिरने के बाद जब ये वापस उठना शुरू करता है तो नॉट जस्ट वन, द प्रीवियस रेजिस्टेंस दोबारा आते हैं. जैसे ये जो हाई सेलिंग हाई वैसा पॉइंट था, रेजिस्टेंस था, ये वापस रैली कर रहा था ना, तो ये वापस से यहाँ पे आके रुकता. आइडियली यहाँ पे वापस से सप्लाई आनी चाहिए थी, राइट? सिमिलरली इस पॉइंट पे यहाँ पे अटका था, यहाँ पे फिर से सप्लाई आनी चाहिए थी, इस पॉइंट पे फिर से सप्लाई आनी चाहिए थी. क्योंकि अच्छा, एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो ये कहता है कि जब ये वापस से रैली कर रहा होता है तो आपके ओवरहेड जितना सप्लाई पेंडिंग है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम है. लेकिन जब मैक्सिमम सप्लाई को, हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर गया, ये जो पॉइंट है इसे क्रॉस कर गया, देन देयर इज नो वन इज स्टक. जिसे निकलना था वो निकल गया, राइट? एंड सो उसके बाद जो है वो वन वे रैली हो जाती है. उसके बाद कोई हाई सप्लाई जोन नहीं है. तो दिस इज द बेस्ट पॉइंट फॉर अ ट्रेडर टू एंटर. We launched Sadhan channel membership YouTube पे, जहाँ पे there are 2 options to get connected with Sadhan. One is the Sadhan Pro, where in 599 rupees you get on 1 exclusive video per month and 4 community posts which will be
more of a action oriented, which would be a product of my synthesis. So I keep synthesizing data, I keep synthesizing the industry knowledge, and I keep sharing there exclusively for Sadhan Pro members. And Sadhan Prime में क्या है कि there would be an on top of these two things there would be 2 more community posts every month. So actually these posts could be actionable from a person who understand it. So it maybe initially some people may not benefit out of it, but over 3 months they will understand the method and they will start utilizing those insightful things. And then a live stream on YouTube for Sadhan Prime members, so they can ask me anything there every month. So that is the Sadhan Prime membership. So अभी तक जो है हम बात कर रहे थे कि यू नो बेसिकली आपका मूविंग एवरेज, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इन सब की बात कर रहे थे, राइट? लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो है स्टेज एनालिसिस का. एंड आई थिंक टिपिकली मैं जो है वो ये यूज करता हूँ ज्यादा कंपेयर, मतलब ऑब्वियसली ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर आल्सो यूज्ड, बट मेजॉरिटी जो फ्रेमवर्क है, अब मतलब उन कॉन्सेप्ट से फ्रेमवर्क जो है दैट इज स्टेज एनालिसिस. एंड आई पर्सनली यूज दिस फ्रेमवर्क. सो स्टेज एनालिसिस क्या कहता है कि कोई भी स्टॉक में अगर आप, मतलब यू कैन ऑल्सो रिलेट टू इट फंडामेंटली. मतलब ऑब्वियसली साइक्लिकल स्टॉक्स में ये चीज ज्यादा रिलेट होती है, लेकिन मतलब जैसे फंडामेंटली हम बोलते हैं एवरीथिंग हैज अ साइकिल, राइट? इवन द ग्रोथ स्टॉक्स हैव अ साइकिल, even the every economy has a cycle, right? Every business has a cycle. So just that की cycle की जो intensity है वो कम ज्यादा हो सकती है. जो proper commodity stocks हैं या जो ऐसे stocks हैं इनमें competition बहुत ही ज्यादा high है, उनमें cycle बहुत ज्यादा crazy हो सकती है. You know, as the market enters, as the player enters or player exits, supply enters, supply exit, demand अच्छी हो, demand खराब हो, उसके हिसाब से, right? But सेम चीज जो है ना वो स्टॉक में रिफ्लेक्ट करती है. तो स्टॉक में बोला जाता है देयर आर 4 phases in any chart basically. The first phase is the accumulation phase, second is uptrend, then distribution and then downtrend, right? तो accumulation होता है stage 1, then uptrend is stage 2, then distribution is stage 3 and downtrend is stage 4. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? accumulation का मतलब ये है जहां पर जो मैं पहले कॉन्सेप्ट बता रहा था कि रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो मैं कह रहा था कि धीरे धीरे जब रेजिस्टेंस आ रहा है तो स्टॉक्स में हैंड चेंज हो रहे हैं, यानी कि नए बायर्स आ रहे हैं, पुराने बायर्स हट रहे हैं, राइट? सो चार्ट पे समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो स्टेज 1 विच इज दिस स्टेज इज कॉल्ड द एक्यूमुलेशन फेज. अच्छा, इसकी खास बात ये होती है स्टेज की कि इस स्टेज में ना स्टॉक ऊपर नहीं जाता है, स्टॉक साइडवेज जाता है. अच्छा, साइडवेज जाने का मतलब एक चीज और है, जो इसकी की मूविंग एवरेज है, जिसमें जो ऑरेंज लाइन दिख रही है ना, वो एक तरीके से इसकी की मूविंग एवरेज है, उसको ऊपर नीचे क्रॉस कर रहा होता है. ठीक है, या तो ऊपर नीचे क्रॉस करेगा या कई बार नीचे भी हो सकता है या थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है. लेकिन इस स्टेज में मेनली बात यह है कि बायर्स और सेलर्स का कोई डिसाइसिव मैंडेट नहीं है. इसका मतलब ये है कि अच्छा, जब स्टॉक एक फॉलिंग फेज में होता है तो ऑब्वियसली बात है कि सेलर्स आर ओवर पावरिंग. लेकिन एक पॉइंट आता है जहां पे बायर्स एंटर हो जाते हैं, उन्हें वैल्यू दिखने लगती है स्टॉक में, राइट? दे सी कि भाई अब वैल्यू बहुत ज्यादा है एंड वी शुड एंटर. अच्छा, उसमें क्या होता है कि अगर सेलर्स बहुत ज्यादा हैं तो तब भी वो फॉल होता रहेगा इवन दो देयर आर बायर्स. लेकिन ऑब्वियसली मतलब फॉर एनी ट्रांजैक्शन टू गो थ्रू द बायर्स और सेलर तो इक्वल होंगे. तो कोई बोलेगा कि भाई बायर्स तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे है, तो स्टॉक फॉल क्यों हो रहा है? लेकिन स्टॉक फॉल इसलिए होता है क्योंकि आप जब मतलब बायर का इंटेंट नहीं है टू पे अ हायर प्राइस, राइट? तो इट इज मोर अ क्वेश्चन, नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वॉल्यूम बट मोर अ क्वेश्चन ऑफ इंटेंट, राइट? तो जब आप ये कहते हो कि यार 100 में खरीदा, फिर मैं 80 में खरीदूंगा, 60 में भी खरीदूंगा, मैं धीरे धीरे स्टैगर्ड बाइंग करूंगा, लेकिन आई एम नॉट विलिंग टू स्पेंड 110 रुपीज. मतलब मेरे अंदर ऐसा नहीं है कि मेरे को लग रहा है फंडामेंटल इतने अच्छे इंप्रूव हो गए हैं कि मैं आई एम विलिंग टू पे एनी प्राइस, राइट? सो it basically, rather than volume, it represents the mandate of the buyer or and the seller. तो अच्छा, जब ये स्टेज 1 में क्या होता है, बायर is buying and seller is selling and ना प्राइस ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, and therefore there is an equilibrium. अच्छा, इसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन, क्योंकि इसमें होगा क्या कि जब भी
स्टॉक थोड़ा सा हाई जाने लगेगा, स्टॉक जब हाई जाने लगेगा तो बायर खरीदना बंद कर देगा, बिकॉज उसने कुछ प्राइस अपने मन में सेट करी हुई है कि दिस इज द प्राइस आई वांट टू बाय एट, right? And as the price moves like 15% above his buying price, he will stop buying. बट क्योंकि सिस्टम में सप्लाई तब भी थी, फिर वापस सेलिंग आएगी और वापस उसकी बाइंग प्राइस पे स्टॉक आएगा, एंड देयरफॉर क्योंकि सप्लाई अभी पुराने हैंड्स खत्म नहीं हुए हैं, एंड देयरफॉर सप्लाई, इसीलिए वो स्टॉक अप डाउन कर रहा है, राइट? राइट। एंड इसमें एक पॉइंट आएगा जब ये ब्रेकआउट दे देगा, विच इज कॉल्ड स्टेज 2. इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये जो 3 टॉप्स हैं, ये एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं. जब इस लाइन, इस पॉइंट के ऊपर इन तीनों रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल गया, दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट, राइट? जैसे मैंने पहले भी बताया था. तो जब ब्रेकआउट आया तो इसका मतलब ये है कि जो पुरानी सप्लाई थी वो खत्म हो गई है. अब जरूरी नहीं है खत्म हो सकता है वापस भी आ जाए, देयर इज नो गारंटी, बट इट गिव्स अस इंडिकेटर कि शायद खत्म हो गई. अच्छा, उसके बाद पुल बैक भी आ सकता है या फिर ये सीधा सीधा ऊपर जा सकता है. There are 2 things that can happen, right? अच्छा, अगर ये क्योंकि सेलर्स की सप्लाई खत्म हो गई है, इसलिए अब कम वॉल्यूम पे ज्यादा भागेगा, राइट? क्योंकि मैं थोड़ी भी खरीदूंगा तो मुझे ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट द क्वांटिटी दैट आई एम ट्राइंग टू बाय. अच्छा, जब पुल बैक आएगा तो ये वाला जो लाइन है, इट मोस्ट लाइकली विल बिकम अ सपोर्ट, एंड यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा. कोई गारंटी नहीं है कि ये सपोर्ट बनेगा ही बनेगा, लेकिन इन ट्रेडर एनालॉजी वो लोग क्या देखते हैं कि वी वांट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ लोएस्ट रिस्क. पॉइंट ऑफ लोएस्ट रिस्क, इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा पॉइंट ढूंढूं जहां पे गिरे तो मेरा 2-4% गिरे, लेकिन बड़े तो 20% बन जाए. यानी कि दे लुक एट रेशियो विच इज लाइक 3:1, 4:1, 5:1. बेसिकली इट मीन्स की upside to downside ratio. So how is to explain that? What is the thumb rule? I will tell you how they look at it. So for example, in this case, where is the support? The support is this line, right? So अगर मैं इस support के 1% के अंदर खरीदूंगा, then my maximum loss is 1%. Why? Because इसके नीचे गया तो technically it is a stop loss. Okay, because मैं बोल रहा हूँ कि this line is a support. सपोर्ट तोड़ा तो मतलब स्टॉप लॉस हिट, ठीक है? अच्छा, अब अच्छा एक चीज और है, ये जो स्टॉक है ना, ये पीछे भी जब नीचे गिर रहा होगा तो कहीं ना कहीं पे टॉप्स बनाए होंगे इसने पीछे, इसके पीछे. तो वो जो टॉप बने होंगे दे विल बी रेजिस्टेंस. ओके, तो अगर नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस के बीच में 20% का डिफरेंस है, यानी कि नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस 20% है और नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट 2% है, देन माय रेशियो इज 10:1. Oh, understood. So it's again the same thing which you have explained 10 minutes back. उसी को it is the same thing. Add on कर रहे हैं. We are building on that. Yes, but this concept is more important for a fundamental investor, and obviously trader के लिए भी है, but it is more useful for a fundamental investor. Why fundamental is more useful? Yeah, I will tell you why. So what happens is when the stock is in stage 2, टेक्निकली सप्लाई तो खत्म हो गई है, एंड देन इट गोज इन एन अप ट्रेंड. अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है हायर हाई हायर लोज. अच्छा, एक चीज होती है जब स्टॉक गिर रहा होता है, देन एवरी हाई इज लोअर देन द प्रीवियस हाई. जैसे यहाँ पे स्टॉक गिर रहा है तो यहाँ पे जब स्टॉक गिर रहा है तो ये यहाँ पे एक हाई बना, वो पिछले हाई के नीचे है. ये जो हाई बना वो पिछले हाई के नीचे है, नेक्स्ट हाई पिछले हाई के नीचे है, राइट? बट जब एक ट्रेंड अपवर्ड होता है तो एवरी हाई इज हायर देन द प्रीवियस हाई. ओके, विच इज अ बुलिश सिग्नल कि भाई अगर ऐसा है देन मींस इट इज अ वेरी गुड थिंग. एंड देन अच्छा, एज एन इन्वेस्टर व्हाट इज माय गोल? माय गोल इज टू नॉट मिस दिस स्टेज 2. यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जो पैसा बनता है ना, वो इस फेज में बनता है. उसके अलावा ना इस फेज स्टेज 1 में पैसा बनता है, ना स्टेज 3 में पैसा बनता है, ना स्टेज 4 में पैसा बनता है, राइट? और आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लेना, अब मतलब कि जहां पे भी आपका हिस्टोरिकली कभी भी मोटा पैसा बना हो, उसमें 95% 98% पैसा उसी फेज में बना होगा. तो अगर आप ऊपर नीचे का फेज छोड़ भी दो, अगर आपने वो फेज कैप्चर कर लिया ठीक से with a meaningful allocation, your work is done as an investor. Okay, let me talk about all the stages first. So stage 2 is the uptrend.
और एक्यूमुलेशन खत्म हो गया स्टेज 1 का, इट इज कॉल्ड अप ट्रेंड. देन स्टेज 3 इज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज. डिस्ट्रीब्यूशन फेज का बेसिक मीनिंग सिंपल भाषा में ये है कि भाई जो इन्वेस्टर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे घुसा था, अब उसको लग रहा है कि वैल्यूएशन थोड़ी एक्सटेंड हो गई है, राइट? या फिर टेक्निकली यूफोरिया हो गया है. एंड देन द काफी बार ऐसा होता है कि आप इवन दो द स्टोरी, अच्छा यहाँ पे जनरली द देयर इज मोस्ट अमाउंट ऑफ चैटर, सबसे ज्यादा लोग स्टॉक के बारे में बात कर रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा. और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस फेज में स्टेज 3 में हाईएस्ट वॉल्यूम्स आती हैं. हाईएस्ट वॉल्यूम क्योंकि सबसे ज्यादा चैटर यहीं पे होता है, यूफोरिया यहीं पे होता है, तो वॉल्यूम्स भी सबसे ज्यादा यहीं पे आती हैं. वॉल्यूम का मतलब स्टेज 2 वर्सेस स्टेज 3, वॉल्यूम को कैसे देखा है सो फार? नहीं, वॉल्यूम मतलब कि नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स, जो स्टॉक की वॉल्यूम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. हाँ, उसी की वॉल्यूम की बात करो कि जैसे बहुत सारे चार्ट होते हैं जिसमें शुरुआत में कम वॉल्यूम रहती है, जो स्टेज 2 में शायद कम होगा, लेकिन हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेज 2 एंड 3 इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो एक चीज ये है कि अच्छा, जब बड़ी वॉल्यूम आ रही है, यानी कि बड़ी वॉल्यूम आ रही है एंड अच्छा बड़ी वॉल्यूम आ रही है तो मतलब बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा है, राइट? तो आइडियली अगर बड़ी वॉल्यूम आ रही है देन द स्टॉक शुड गो अप, राइट? लेकिन बड़ी वॉल्यूम आने के बावजूद स्टॉक इज गोइंग डाउन. इसका मतलब यह है कि इट बिकम्स अ नेगेटिव, यानी कि इतने ज्यादा लोग खरीद रहे हैं लेकिन सेलर्स आर ट्राइंग टू ओवर पावर, और इसलिए उसके बावजूद भी प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही है, राइट? सो जो एक चीज ये है कि इस फेज में, मतलब कहने का मतलब ये है कि अप ट्रेंड के बाद जब ये जो ब्लैक लाइन है, आप सिर्फ मूविंग एवरेज की डायरेक्शन देखो, डोंट लुक एट द स्टॉक डायरेक्शन. मूविंग एवरेज प्लेट्यू होने लगे एंड साइडवेज जाने लगे, दैट इज द फर्स्ट सिग्नल कि, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि उसके बाद नीचे ही जाएगा, हो सकता है कि यहाँ के बाद वापस ऊपर चला जाए. इट इज लाइकली, इट इज नॉट लाइक इट इज अ थंब रूल कि यही होना है, राइट? बट I think that is where you need to be smart enough to combine fundamentals and technicals. तो fundamentally आपको ये देखना है कि स्टोरी कितनी लंबी है, right? For example, power sector, right? As we were discussing a few days ago, right? We know कि यार स्टोरी लंबी है, even though अभी थोड़ा 6 महीने साइड में जा सकता है, 3 महीने जा सकता है, या फिर फॉर एग्जाम्पल रियल एग्जाम्पल, राइट? जेन टेक्नोलॉजी, राइट? आप ही का स्टॉक, राइट? तो आपसे मेरी बात हुई थी शायद 500 रुपए पे, और मैं 500 रुपए पे भी बायर था. मतलब my buying price is around 500 to 600 rupees, right? Right. And why? Because even after it became whatever X, मुझे 600 पे भी फंडामेंटली अच्छा लग रहा था क्योंकि ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी ज्यादा थी. आई नो कि यार ये चीज अभी इट हैज अ लॉन्ग, इट विल कैरी ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अभी बड़े ऑर्डर्स आना बाकी हैं. द मैनेजमेंट वाज बुलिश, राइट? सो इवन दो साइड में कुछ फैटीग आया था, लेट मी एक्चुअली ओपन द रियल चार्ट, तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा. वो इज अ मोर रियल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस व्हिच वी हैव सीन. थ्योरेटिकल तो देख चुके हैं. सो फॉर एग्जांपल 2021 में तो यहाँ पे तो देखो साइडवेज मूवमेंट है. लेट मी डू अ वीकली चार्ट या. सो यहाँ पे इफ यू सी, सो बड़ी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया. सो एक्चुअली इस स्टॉक में, सो ये जो साइकिल्स हैं दे कीप रिपीटिंग, राइट? दिस वाज द स्टेज 4, बेसिकली अ कंप्लीट डाउन ट्रेंड. यहाँ पे कुछ बुरा हुआ होगा, राइट? कोविड, दिस इज फ्रॉम 2018 to 2020, राइट? दिस वाज द ब्रेकआउट, but somehow Mr. Junjunwala had invested into 2016 into this counter that I got to know. Okay, I'm not aware, but basically अगर हम normal chart की बात करें तो देखो, look at the trajectory of the black line, it is trending downwards. The stock is not able to cross it upwards, so every time it is hitting the black line, seller आके उसे नीचे गिरा दे रहे हैं, right? And यहाँ पे it flattened, the black line flattened out, which basically means stage 4 से ये stage 1 में चला गया. Okay. Coincidentally, this is the same, following the same pattern of a small cap index, because June 20. Yes, you're right. Most of the time it will, but sometimes it might not. So obviously बात है कि कोई भी स्टॉक दो चीजों से ही इम्पैक्ट होता है, एक ओवरऑल मार्केट और दूसरा स्टॉक स्पेसिफिक स्टफ, राइट? तो यहाँ पे इफ यू लुक एट इट, बिकॉज इवन आफ्टर इट फॉलोड, बट कोई सब्सटेंशियल रैली नहीं आ रहा था, राइट? उसके बाद यहाँ पे ये वापस से फिजल आउट हो रहा था, राइट? But I don't know what happened in August 2021. I think IDDM or something like that might have happened.
Actually, Uh, they have come up with the drone policy. That was the yes, the yeah, policy framework came. So they become yeah. And so look at the crazy green lines below it, the volume bars, right? So volume आया, भयंकर volume आया, which is like 10x 20x of the previous volume. पहले की bars बहुत छोटी हैं. वॉल्यूम के साथ प्राइस राइज करा. वॉल्यूम आया, प्राइस नहीं बढ़ा, वेरी नेगेटिव, राइट? वॉल्यूम आया, प्राइस बढ़ा, वेरी पॉजिटिव, राइट? सो एंड उसमें भी गैप अप आ गया. गैप अप आ गया मतलब वीकली गैप अप है, तो यानी कि यहाँ पे शायद ऑर्डर भी कुछ तो मिला होगा मेरे को. उस टाइम पे मैं ट्रैक नहीं कर रहा था, आई डू नॉट नो. गैप आ गया मतलब कि यार बायर इज विलिंग टू पे एनी प्राइस. क्लोज यहाँ पे हो रहा है, ओपन यहाँ पे हो रहा है, देख रहे हो बीच में गैप है, राइट? राइट. आई कंसिडर गैप्स वेरी वेरी पॉजिटिव. लोग कहते हैं गैप फिलिंग होता है, ये होता है, वो होता है, बट आई कंसिडर देम वेरी पॉजिटिव. एंड अगर अपवर्ड डायरेक्शन में गैप आ रहा है, इट बेसिकली मीन्स कि यार बायर डजंट केयर अबाउट द प्राइस, ही जस्ट वांट्स टू बाय इट. Okay, just one cross question maybe because price volume action. So, or एक तो you have a setup which I'm seeing, but do you track any price volume indicator, PV indicator or something else? Yes, You can I see do that. track. I do track. I'll tell you what I do. I have a screener which basically every single day it, but उसमें क्या होता है, उसमें noise ज्यादा आती है, actionable items कम आते हैं. Every day it will give me 5-10 names जहां पे price volume action हो रहा है, which is the same thing, which basically means कि एक week का जो volume है वो पूरे साल के average volumes का 5 गुना है. So, right? Or something like that. Yeah, I can share that screen. Yeah. So I let me share it. Volume spikes, for example, this one. Right. So these are companies where there are huge volumes, right? So I think the formula is simple. The 1 week volume is more than 1 year average volume into 3. That's all it is. It is saying, right? Okay. Right. Simple. But इसको थोड़ा और stringent करा जा सकता है. For example, I track this company, Manorama Industries. Yeah. Right? In fact, I have it in my portfolio as a disclaimer. So here, so if you look at recent volumes are very very huge compared to last 1 year volume. So जो पहले volume 4 लाख का था on an average, यहाँ पे almost 1.6 almost 16 लाख का हो गया. Okay. Right? तो 4x volume jump हुआ है, and the price is in upward direction. So I know what is happening in this stock. In this stock, I think almost 1.5x capacity went live last week. In fact, जब ये price volume action आया था last week, तो announcement नहीं आया था. So I'll show you. The announcement came yesterday. The announcement came yesterday. And action is how action is already done. Action is already done. Okay. So look at this. So this is the announcement which is saying, you know, we have 40 almost. So इनका 15,000 का कैपेसिटी था, 25,000 का नया कैपेसिटी आया है, तो 40,000 कैपेसिटी हो गया है. Okay, but the action was already done. So that is why it is a good signal कि यार क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है. If you understand कि यार अगर आप पहले से ट्रैक कर रहे हो, so I am tracking this for last 2 years, so I know कि this quarter the capacity was supposed to come live. So I knew कि most likely उसी की वजह से ये वॉल्यूम आया है. If you look at Manorama Industry now, for example, if we so yes, very 1 week ago, let's say 1 week ago. So I think now let's wear an investor hat, right? So what is happening? पहले तो हमें ये देखना होगा कि यार ये हमारे फंडा उसमें जा रहा है या नहीं. तो I'll do very basic math. ये जो 429 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है, मानते हैं पूरे ईयर में 429 ही रहेगा, अराउंड इतना, क्योंकि ना इन्होंने पहले भी एक कैपेसिटी एक्सपेंशन करा था 2021 में, आई थिंक 2020-21 में. सो वो जो है वो धीरे धीरे हो रहा था लाइव, एंड नाउ ये जो है इसमें कुछ भी नए कैपेसिटी का नहीं है. सो आई एम अवेयर ऑफ दैट, राइट? इट इज अ 16% मार्जिन कंपनी, राइट? But the margin have fluctuated a lot. So पहले 2%, 8% margin था, 28% गया, then it started reducing, right? So now, अच्छा, why did it go 28%? And why did it come down? That is the first thing that we need to know. So यहाँ पे ना इनका trading business हुआ करता था, which they shut down. Okay. Because of this, यहाँ पे margin बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे. Volume also dropped. Volume also, हाँ. So यहाँ पे इन्होंने फिर capacity expansion किया.
अच्छा, ये जो है ना वो बनाते हैं, बटर बनाते हैं जो कि चॉकलेट में यूज होता है, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो ये बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ कोकोआ है, बट बेसिकली ओनली 5% ऑफ द चॉकलेट इज कोकोआ बटर इक्विवेलेंट. And because it is cheaper than cocoa, a lot of companies use it. They have all the clients, Hershey's हो या Nestle हो, and all the big guys, मतलब they are their clients. And ये जो बटर बनाते हैं, ये बनाते हैं यूजिंग मैंगो का जो सीड होता है, एंड साल सीड्स एंड अ लॉट ऑफ अदर डिफरेंट सीड्स जो फॉरेस्ट में मिलती है, उसका बटर बनाते हैं, एंड वो बटर कोकोआ में मिक्स करके चॉकलेट्स बनती हैं. अर्लियर पूरा प्योर कोकोआ से बनता था, बट नाउ दे मिक्स इट ऑल, राइट? सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार एवरेज मार्जिन प्रोफाइल क्या होगा, क्या वो 16% होगा, क्या वो 28% होगा, या 2% होगा, राइट? मेरे हिसाब से आई थिंक अराउंड 18-20% इज अ रीजनेबल मार्जिन फॉर देम. वाई? बिकॉज यहाँ पे ना इनकी कैपेसिटी भी आई थी लाइव, और उसकी वजह से पूरा यूज नहीं हो पा रहा था, एंड देयरफॉर द मार्जिन सफर्ड. एंड नाउ अभी धीरे धीरे मार्जिन इंच अप हो रहा है, इसीलिए क्योंकि वो पुरानी कैपेसिटी यूज होनी शुरू हो गई है, एंड देयरफॉर द रेवेन्यू इज ऑल्सो इंचिंग अप, राइट? एंड प्लस अब ये जो नई कैपेसिटी है वो 15K से 40K पे जा रही है, विच बेसिकली मीन्स top line can go into around whatever 900 or 1000 crore, something like that. I don't know, maybe it will take 3 years, maybe it will take 2 years. Plus there is one more interesting thing that happened, and that is, you know, cocoa prices have 3x'd in the last 1 year. If you look at the news, every chocolate maker is crying, क्योंकि अच्छा हुआ क्या, अफ्रीका में ड्रॉट्स आ गए, एंड देयरफॉर उनकी जो यील्ड है वो 35% डाउन है इस बार, एंड कोकोआ की बहुत ही ज्यादा सप्लाई शॉर्टेज है, एंड देयरफॉर ऑलमोस्ट ये 3,000 का 10,000 पे आ गया इसका प्राइस, एंड पीपल आर सेइंग कि यहाँ से भी ऊपर जाएगा, एंड दिस इज नॉट जस्ट 2-3 साल हाई, दिस इज अ 25 ईयर लाइक लाइफ टाइम हाई. आज तक इतना कोको का प्राइस जिंदगी में कभी गया नहीं. I think coffee is also getting dearer. कॉफी भी धीरे धीरे जा रही है, एंड सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग इज कि क्योंकि दे मेक इक्विवेलेंट ऑफ कोकोआ, तो कोकोआ का रिप्लेसमेंट है. तो लास्ट टाइम आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल इन 2014 or 15, समथिंग सिमिलर हैपेंड. देयर वाज एन आर्टिकल व्हिच वाज सेइंग कि सडनली दे हैड अ ह्यूज डिमांड बिकॉज इट वाज रिजल्टिंग इन प्राइस कॉस्ट सेविंग फॉर द चॉकलेट मेकर्स, सिमिलर टू लाइक इथेनॉल मिक्सिंग इन पेट्रोल, राइट? इथेनॉल इज चीपर, so people are willing to mix it, right? Nice. Same thing here. So I think at least for the short term ये margin 20% आराम से जाएगा. But what if prices crash down, then what would be impact as per you? So they were making decent margins even at like $3,000. So ideally low prices का मतलब है 15-16% margin तो बन ही रहा है, right? But my point is it could be like a one-off, but let's not consider it in our thesis. मतलब that is not the main point. The main point is कि भाई capacity expand हुआ है, and this could like उससे भी additional margin benefit मिल सकता है for short term. Yeah, they could give a very good breakout, but it may not sustain for this quarter. It may not sustain. It may not sustain. मतलब it might sustain for let's say till next season. Next season शायद 1 साल बाद आएगा, तो 6-8 महीने sustain कर जाए, but ऐसा नहीं है कि ये 5 साल तक इसी भाव पे घूमता रहेगा. सो दैट इज वन थिंग. अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि यार फंडामेंटली अच्छा 38 करोड़ के रेवेन्यू मे बी 2-3 साल में शायद 100 करोड़ के पहुंच सकते हैं थियोरेटिकली, राइट? सो 100 करोड़ पे अराउंड 27 का पीई बन रहा है, राइट? हिस्टोरिकली इस कंपनी को ना 40-50 का पीई मिलता आया है. द मैनेजमेंट एंड ऑब्वियसली यू डू द मैनेजमेंट वर्क एंड ऑल ऑफ दैट. तो आप बोलते हो कि ठीक है, मतलब महंगा है, बट इट इज नॉट लाइक यार क्रेजी नहीं है कि 100 पीई पे चल रहा है या कुछ वैसा है. मतलब लुक एट द पीई, इट ऑलवेज गेट्स अ 70-60-50 पीई काइंड ऑफ अ पीई. इसको हिस्टोरिकली मिला है हमेशा, क्योंकि इट इज अ नीश बिजनेस, एंड इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना इतना आसान नहीं है. ये जो है आपका, जो आपके यू नो फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते हैं ना, ट्राइबल पीपल रहते हैं, उनका पूरा नेटवर्क बना रखा है इन्होंने to you know get the raw material, which is not easy to build. So interesting business. So तो fundamentally आपको लगा कि ठीक है, मतलब neither expensive nor cheap, something like that, right? But now let's look at technically. यहाँ पे ये obviously मतलब, so पहली बात तो black line is trending upwards, so it is not in a downtrend, even though ये temporarily थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा था, लेकिन it is still trending upwards. अच्छा, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है कि
जितना ज्यादा स्टीप है ये ब्लैक लाइन, यानी कि एक है कि 10 डिग्री पे मूव कर रहा है, एक है 20 डिग्री पे, एक है 70 डिग्री पे मूव कर रहा है, राइट? फॉर Right. एग्जाम्पल अगर आप स्नाइडर के केस में बोलोगे तो वो 70 डिग्री पे मूव करेगा, कर रहा होगा, या 80 डिग्री पे मूव कर Correct. रहा होगा, समथिंग लाइक दैट, राइट? या दिस इज मूविंग एट अराउंड 45 डिग्रीज, Right. राइट? सो जितना ज्यादा डिग्री का स्लोप होगा, अगर वो क्रॉस करता है नीचे की तरफ, उतना कम नेगेटिव माना जाएगा। जितना ज्यादा कम स्लोप होगा, उसको क्रॉस किया उतना ज्यादा नेगेटिव माना जाएगा। अच्छा, क्यों? इसलिए क्योंकि इसका मतलब ये है कि यार अगर वो अभी सुपर फास्ट ऑर्बिट में था तो शायद फास्ट ऑर्बिट में चला जाएगा। मतलब अगर 70 डिग्री का है तो भले ही वो नीचे क्रॉस करे, इट इज मोर लाइकली टू कम बैक एंड स्टार्ट मूविंग एट अ 45 डिग्री एंगल इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्रेकिंग डाउन। It's like a road blocker type सारा है। या सो दैट इज व्हाट इट मींस। सो इसमें फॉर दिस पर्टिकुलरली इसने ना यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया अराउंड द मार्च, जब उसी टाइम पे जब पूरा क्रैश हुआ था स्मॉल एंड मिड कैप। तो नथिंग स्पेसिफिक टू द कंपनी, बट लुक एट दिस रेड कैंडल, यहाँ पे आया, इसको ब्रेक डाउन किया। फॉर अ ट्रेडर इट वाज अ वेरी नेगेटिव साइन, मोस्ट ऑफ देम माइट हैव एग्जिटेड एट दिस पॉइंट, बट इन द नेक्स्ट 2 वीक्स इट केम बैक अबव दैट, एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अ ट्रेडर। सो ट्रेडर क्या बोलते हैं कि आपका जो व्यू है, प्राइस डिटरमाइंस योर व्यू, यू डू नॉट डिटरमाइन योर व्यू। तो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव थे और जब ये वापस क्रॉस हो गया, यू बिकम पॉजिटिव अगेन, Right. अनलाइक अ फंडामेंटल इन्वेस्टर वेयर दे डू नॉट चेंज देयर व्यू सो इजिली। उनका व्यू अगर नेगेटिव सेट हो गया तो प्राइस ऊपर भी जाएगा तो वो नेगेटिव रहेगा। ट्रेडर आर मोर लाइक दे कीप फ्लक्चुएटिंग, दे डोंट केयर, दे जस्ट सी कि भाई चार्ट पॉजिटिव है या खराब है। अच्छा, नाउ इट इज ऑल रीसेट क्योंकि चार्ट इज ट्रेंडिंग अपवर्ड्स, नाउ इट इज अगेन बैक अबव द 200 डे मूविंग एवरेज, मोस्ट लाइकली दे विल री एंटर इट, बट देयर इज अ गैप अप, राइट? उसके बाद यहाँ पे गैप अप आया, फिर उसके बाद इट इज स्टिल ट्रेंडिंग अपवर्ड्स, देन देयर वाज न्यूज अराउंड कोको एंड ऑल दैट, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस है। व्हाट आई फील इज अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया, राइट, इन द नेक्स्ट व्हाटएवर 1 year 1.5 year it can easily give 70-80% returns. Why? Because this is the only immediate resistance. In the historical past there is no resistance. So let me actually, NSE का चार्ट है, let me open BSC, उसमें longer history है। So इसका अगर आप देखोगे, अच्छा एक चीज और है, अगर पीछे का चार्ट ऐसा होता कि गिरता 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 आ रहा है तो पीछे बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे उसे ऊपर उठने, जहां वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा ना, पीछे वाले जो बायर्स हैं जो पुराने लेवल्स पे स्टक हैं वो उसे पटक देंगे वापस नीचे, राइट? इन दिस केस ऐसा बोलते हैं कि भाई अगर उसने अपने प्रीवियस सारे लेवल तोड़ के ऑल टाइम हाई पे चला गया, देन कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो लॉस में है, एवरीबडी इज इन प्रॉफिट, राइट? अगर हर कोई प्रॉफिट में है देन नोबडी वांट्स टू सेल। जब लोग फंसे होते हैं एंड देन वो वापस प्रॉफिट में आते हैं, दैट इज द पॉइंट वेयर मोस्ट पीपल वांट टू सेल। अगर आप 100 में खरीदा है और आज 200 भी हो गया है, देन व्हाई वुड यू सेल? बोलो ठीक है जाने दे, 300 जाएगा 400 जाएगा, व्हाई डू आई केयर, राइट? सो दैट इज कॉल्ड द ब्लू स्काई जोन और द फ्री जोन। सो इन दिस केस नाउ वंस इट अभी राइट नाउ इट इज अराउंड दैट लेवल, अभी उसको तोड़ नहीं पा रहा है। अगर डिसाइसिवली इस लेवल को तोड़ के ऊपर चला गया, 500 के ऊपर चला गया, देन इट इज इन दैट फ्री जोन अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स। So yeah, I was coming back to the stages. So इसमें stage 3 का मतलब है distribution, and then stage, तो इसका मतलब ये है कि again the buyers and sellers are in equilibrium. Right. They do not know कि भाई ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है, and जब ये वापस नीचे गिरने लगा है तो इसका मतलब ये है कि now the sellers are dominating. There is less buying interest, and जिन लोगों का बहुत मोटा प्रॉफिट आ चुका है वो पैनिक कर रहे हैं, they are in their profit protection mode. राइट? क्योंकि नाउ द स्टॉक है। अच्छा, फॉर एन इन्वेस्टर, अब लेट्स टॉक अबाउट इसका क्या मतलब है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप स्टेज 1 में छोटी बाइंग करोगे, मे बी 1% 2% बाइंग करोगे, ब्रेकआउट पे उसे 5-10% पे लेके जाओगे, डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली आपकी थीसिस क्या है, आप कितने बुलिश हो, आप अपना एलोकेशन बढ़ाओगे। पुल बैक पे दिस इज द पॉइंट वेयर ट्रेडर्स ट्राई टू एलोकेट, दिस इज वेयर यू विल बाय अ सेकंड ट्रांच, राइट? एट दिस पॉइंट अगर वो नीचे की तरफ तोड़ देता है तो आपको फंडामेंटल और टेक्निकल कंबाइन करनी है। मे बी यू विल अगेन सेल एंड ट्राई टू री एंटर लेटर, मे बी आप अपनी पोजीशन पे 2-4% का लॉस खा लोगे, बट एटलीस्ट यू विल नॉट बी इन अ स्टेज वेयर द चार्ट इज नॉट इन योर फेवर। बट जहां पे आपको ये क्लियर हो गया कि द चार्ट इज इन योर फेवर, यू विल गो इन योर मैक्सिमम पोजीशन, यू विल not do anything until this line is in uptrend and it is below the chart,
मतलब आपके चार्ट के नीचे नीचे चल रही है, एज दिस लाइन्स फ्लैटन्स आउट एंड वापस से ये अप डाउन मोशन शुरू हो जाएगा, तो यू बिकम कॉशियस, यू डू नॉट सेल एट दिस स्टेज, यू बिकम कॉशियस। ओके, अगर यहाँ पे एक मोटा रेड कैंडल आ गया, मोटा रेड कैंडल आ गया और इसे नीचे की तरफ तोड़ दिया विद बिग वॉल्यूम्स, देन दैट बिकम्स अ वेरी वेरी सीवियर इंडिकेटर कि भाई यहाँ पे खेल खत्म हो चुका, राइट? देन इज अ टाइम कि आप पूरा बेच के निकल जाओ, राइट? सो समटाइम्स होता क्या है कि आपको आपको ना इस पूरी जर्नी में आपको लगेगा कि यहाँ पे स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया या यहाँ पे ओवर वैल्यूड हो गया, राइट? बट अगर कोई इंडिकेटर नहीं है खराब, देन यू वांट टू राइड द होल जर्नी, मे बी वो वहां से भी डबल हो जाए, राइट? काफी बार ऐसा होगा कि इस साइडवेज मूवमेंट में काफी टाइम बीत जाएगा, मे बी 3-6 महीने बीत जाएं, राइट? बट क्योंकि अगर फंडामेंटली आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है तो आप इसमें बने रहोगे, क्योंकि देयर इज अ हाई चांस कि वो इस रीजन के बाद यहाँ से, अच्छा जब ये बहुत ज्यादा टाइम इसमें स्पेंड करेगा ना, तो यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस बन जाएंगे, ये रेजिस्टेंस बन जाएंगे, और जब ये इसको इस वाला टॉप, इस वाला टॉप, इस वाले टॉप, इन सबको तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा, देन इट बिकम्स लाइक अ फ्रेश स्टेज 2, एंड देन हो सकता है वहां से कैरी ऑन करता रहे। फाइनली अगर वो उसे तोड़ के, मतलब कि आपका जो चार्ट है वो उसके नीचे आ जाए, एंड आपका जो ये रेड लाइन है वो उसके ऊपर आ जाए, विच इज द मूविंग एवरेज इज अबव द द चार्ट, दैट इज द क्लियर इंडिकेशन कि स्टेज 4 शुरू हो गया है। एंड देन इट इज, इस टाइम पे यू विल नॉट वेट कि मैं 5% वेट, मैं 1 महीना वेट कर लेता हूँ शायद चार्ट वापस आ जाए। इस टाइम पे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेड 2x 3x गेन्स, यू वांट टू लॉक देम एज सून एज पॉसिबल। एंड देन अगर आपका व्यू चेंज हो जाता है, इन द सेंस कि टेक्निकली भी व्यू चेंज हो जाता है और फंडामेंटली भी, इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड, यू कैन बाय इट अगेन, बट डू नॉट ट्राई टू बी एडवेंचरस इन दिस जोन। एंड देन इस जोन में तो वो बोलते हैं कि भाई कभी टच ही नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इफ दिस मूविंग एवरेज इज ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स, you never touch. So let me give you one real example. So for example, Loris Labs का example मैं आपको देता हूँ। So same thing जो start में दिख रही थी, अब आपको शायद visualize हो रही होगी यहाँ पे, right? Look at this black line in the past, हमेशा उसके ऊपर है, 2017, 18, 19, right? अच्छा, एक चीज और कही जाती है कि जितना ज्यादा लंबा ड्यूरेशन होगा ये, क्या बोलते हैं उसका, पेन का जितना ज्यादा लंबा ड्यूरेशन होगा, अगर 8 साल 10 साल है और उसके बाद ब्रेकआउट आ रहा है, तो वो उतना पावरफुल ब्रेकआउट माना जाता है। ओके। और एक चीज ये है कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस जितना ज्यादा नियर होगा, उतना गंदा रेजिस्टेंस, मतलब उतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस माना जाता है। अगर दूर बहुत रेजिस्टेंस है, 5 साल पुराना है, कोई हाई है, राइट, तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचो कि वहां पे जो लोग फंसे हुए थे उन 5 साल में शायद निकल गए होंगे, लेकिन अगर कोई 6 महीने पहले फंसा था तो शायद वो अभी भी फंसा हुआ होगा, राइट? तो जितना नियर होगा रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जितना ज्यादा दूर होगा रेजिस्टेंस, उसकी उतनी कम वेटेज दी जाएगी। और डाउन ट्रेंड जितना ज्यादा सीवियर होगा, उसको उतने ज्यादा, उसके ब्रेकआउट को उतनी ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। तो इसमें देयर वाज ऑलमोस्ट अ 3 ईयर डाउन ट्रेंड। यहाँ पे देयर वाज नो बाइंग फ्रॉम एनी ट्रेडर, तो इसीलिए बोलेंगे यहाँ पे घुसना ही नहीं है। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया कोविड की वजह से, एंड देन अगेन ब्रेकआउट आया, ह्यूज वॉल्यूम्स आए। लुक एट द वॉल्यूम बार्स, वॉल्यूम्स ना बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा हुआ है, राइट? And now there is no stopping. The chart is, started riding. The trend of this black line is riding at whatever 70 degree, right? And now, yeah, this was the time जहाँ पे आपको एक फंडामेंटल व्यू भी होना चाहिए कि ये कितने एक्स की स्टोरी बन रही है, राइट? राइट। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये है कि अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ आ रहे हैं। इसमें एक रेजिस्टेंस इस लाइन पे आ रहा है, इस लाइन पे आ रहा है, जो कि इसने तोड़ दिया, उसके ऊपर निकल गया, राइट? अगर थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, एक और रेजिस्टेंस शायद इस जोन में आ रहा है। यहाँ पे कुछ डिसाइसिव हाईज नहीं है, एक हाई, कुछ हाईज यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये एक जोन है, राइट? कुछ हाई, ये ऑल टाइम हाई है, ये इसको तोड़ दिया, ठीक है? तो जैसे जैसे ये ब्रेकआउट्स आते रहे, ये स्टेज 4 थी, ये एक्यूमुलेशन जोन है, ये स्टेज 1 है, ये ब्रेकआउट आया, फिर स्टेज 2 शुरू हुई। स्टेज 2 में प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ, मतलब कि ऐसा कि छक्का मार के तोड़ा है, ऐसा नहीं है कि बस आराम से तोड़ दिया, मतलब बिल्कुल बढ़िया से तोड़ा है, वॉल्यूम्स इतने बड़े बड़े हैं। तो इसका मतलब ये है भाई कुछ बड़ा है,
and then you have a fundamental view also to club along with it, and then क्योंकि यहाँ पे कभी इसको तोड़ा ही नहीं ब्लैक लाइन को, तो कोई सेलिंग का पॉइंट ही नहीं बना, राइट? इवन दो आपका फंडामेंटल ऑफ व्यू कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, डजंट मैटर, द मार्केट इज गिविंग यू मनी, यू डू नॉट जस्ट लेट इट गो, एंड देन चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अच्छा, लुक एट दिस, समथिंग बिग हैपेंड हियर, राइट? यहाँ पे ये अपना हाई तोड़ के ये गंदी रेड कैंडल मारी, मतलब इतनी ज्यादा मोटी रेड कैंडल एंड विद स्मॉल विक्स, वेरी बिग रेड कैंडल। इसका मतलब ये है कि सेलर ओवर पावर करना शुरू हो गए हैं बायर्स को, राइट? जैसा मैं कैंडल में बता रहा था, द विक इज सो स्मॉल दैट यू नो इट इज बिग रेड कैंडल, एंड सो अच्छा, जो ब्लैक लाइन है दैट स्टार्टेड फ्लैटनिंग आउट, दिस वाज द टाइम टू बी कॉशियस, मे बी नॉट एग्जिट बट बी कॉशियस, ओके? एंड देन हो सकता है कि ये, अच्छा अगर यहाँ पे ये इस जोन में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, राइट? ये दिस इज अ जोन वेयर इट इज स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, यहाँ पे हाईज बन रहे हैं लेकिन ये हाई तोड़ नहीं पा रहा है। अब ये अगर यहाँ से बाउंस करके इसको तोड़ के ऊपर निकल जाता, देन द व्यू इज अगेन बुलिश, यू आर अगेन इन अ फ्रेश स्टेज 2, अगेन फ्रेश स्टेज 2, बट इट डिडंट हैपन, इट एक्चुअली वेंट बिलो दिस, even though the volumes are not that big, लेकिन यू नो इफ यू कंसिडर फ्रॉम द पास्ट, यानी कि 2017 से 19 तक अगर आप बात करो, कंपैरेटिवली द वॉल्यूम्स आर बिग, लेकिन हाँ मतलब इमीडिएट पास्ट में उतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं है, बट स्टिल योर व्यू बिकम्स नेगेटिव हियर। तो अगर आप ऑलरेडी 3x 4x पैसा बना चुके हो, द एग्जिट पॉइंट वुड बी दिस रेड कैंडल, इस पे आप पूरा एग्जिट कर जाओगे, 100% एग्जिट, एंड देन ऑब्वियसली you combine the fundamentals, because I never invested in the stock, so I do not know कि इसमें क्या हो रहा है, but I think you might know, but this is how a trader would think of this chart. And now what is happening, look at it, stage 4 again, stage 1 फिर से black line flatten out हो गई है, again breakout, यहाँ पे breakout आया है, now again it is above the, even though the degree which was 45 degrees, hardly 20 degrees now, right? So it is not a very उतना ज्यादा bullish नहीं है, but still the market is somehow, you know, bullish about it again after now whatever 1.5 year 2 years. अब जो सीखा है, मैं ना कुछ रियल एग्जाम्पल से आपको यही चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ, काफी रियल एग्जांपल्स, मतलब जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से बताता हूँ। तो एक कंपनी है वेलिएंट ऑर्गेनिक्स, राइट? सो ये जो कंपनी है ये ऑब्वियसली आरती ग्रुप की कंपनी है, केमिकल बनाती है, एग्रो केमिकल्स में यूज होते हैं, और भी आई थिंक उसमें यूज होते हैं, टेक्सटाइल में भी यूज होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बनाती है ये, जो कि इंटरमीडिएट्स की तरह यूज होते हैं। तो इसमें अगर आप इसका वो देखोगे ना फंडामेंटली, तो इन्होंने आई थिंक 2x या 3x किया है अपना कैपेसिटी पिछले 3-4 सालों में। आई थिंक जो फंडामेंटली जो व्यू था मेरा, आज का नहीं, 2-3 साल पहले का व्यू बता रहा हूँ, मतलब मैं तो 2-3 साल से ट्रैक कर रहा हूँ इस बिजनेस को। तो लुक एट द फिक्स्ड एसेट्स, 276 करोड़ से 510 करोड़, 543, 670, 688, ऑलमोस्ट मोर और लेस 2.5x काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गए हैं फ्रॉम 2020 टू 2024, राइट? तो व्यू ये था कि 4x का मतलब है कि 4x आपका रेवेन्यू भी होना चाहिए। अच्छा, बीच में क्या हुआ, फंडामेंटली इनमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू बनाना चाह रहे थे कुछ केमिकल। अब आई एम नॉट गुड विद केमिकल कंपनीज, तो मैं भूल गया हूँ केमिकल का नाम, मैं भी ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। पैप बोलते हैं, पैप, पैरा अमीनोफिनॉल, तो पैरासीटामोल बनाने के लिए यूज होता है। तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस से बनाना था, वो इनका कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई इनका की बंदा चला गया, साधना करके कंपनी है उसमें, साधना नाइट्रो। तो वो लोग कंटिन्यूअस बना लिए, और ये लोग नहीं बना पाए। तो इसमें ना 2 राउट होते हैं, एक नाइट्रोबेंजीन के थ्रू बनाते हैं और एक जो ट्रेडिशनल राउट है। तो इनका आइडिया ये था कि हम नाइट्रोबेंजीन के थ्रू बनाएंगे, क्योंकि वो ग्रीन केमिस्ट्री है, उसमें वेस्ट नहीं प्रोड्यूस होता, मतलब पोल्यूटिंग नहीं है। दिस इज अ ट्रेडिशनल प्रोसेस पोल्यूटिंग, एंड प्लस उससे जो आउटपुट आता है वो ज्यादा प्योर आता है। आई थिंक 99.95% प्योरिटी होती है, एग्जिस्टिंग वाले में सिर्फ 99% प्योरिटी, या एग्जैक्ट नंबर्स हो सकता है, डोंट कोट मी, बट इसमें प्योरिटी कम होती है। तो एंड यूजर्स थोड़े बहुत डिफर कर जाते हैं, एंड पीपल आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर दैट।
बट इनका वो बंदा चला गया एंड देयरफॉर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस भी नहीं कर पाए एंड ये बैच प्रोसेस कर पाए, जिसकी वजह से अपने Okay. केपेक्स का अच्छे से यूज नहीं कर पाए. Hmm. सो दैट वाज द स्टोरी. बट स्टिल मतलब व्यू ये था कि एटलीस्ट जो केपेक्स आ रहा है वो अच्छा करेगा, मतलब कुछ तो करेगा, क्योंकि भर भर के केपेक्स किया है. लेकिन हुआ क्या, इनके जो रेवेन्यूज हैं वो 675 करोड़ से इतने गए 1153 करोड़. इसमें केपेक्स का कुछ नहीं है बाय द वे, अभी ज्यादा आया भी नहीं. कर ये तो And प्राइस का ही लग रहा है, बिकॉज उस समय प्राइस बढ़ी भी थी, मतलब केमिकल हाँ, प्राइस. उस समय प्राइस बढ़ी थी, उसमें प्राइस बढ़ी थी. दिस वाज अ गुड साइकिल फॉर द केमिकल हाँ, for इंडस्ट्री. एंड देन chemical. उसके बाद वो आया ही नहीं रेवेन्यू में कुछ भी, क्योंकि दो तीन चीजें हो गई. एक तो इनका केपेक्स खराब हो गया, Correct. प्लस डिमांड डिस्ट्रक्शन भी हो गया मार्केट में. Okay, हाँ, एंड वो. देयरफॉर एंड इनके केपेक्स डिले भी हो गए थे. बट एनीवेज मेजर आइडिया ये था कि ये सब होने के बावजूद जो मार्जिन थे ना वो 27% से कंटिन्यूस श्रिंक हो रहे हैं, 18%, 16%, 12%. और अभी भी कमेंट्री बहुत खराब है. Okay. बट आई थिंक, अच्छा, एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर हु ट्रैक साइकिल, वो क्या सोचता है, क्या बोला जाता है कि इन्वेस्ट एट पीक पेसिमिज्म, राइट? इन्वेस्ट व्हेन एवरीवन इज फियरफुल, राइट? सो अच्छा, लेट्स लुक एट द चार्ट नाउ. एवरीवन वाज फियरफुल हियर, December 21, everyone was fearful here, everyone was fearful here. एंड ये 10-20 रुपए का फर्क नहीं है, ये 1400 है, ये 800 है, ये 900 है, ये 700 है, ये 500 है, 400, मतलब 1800 से 400 है, 400 है. और इस बीच में ये अभी पीछे ना 400 पूरा, मतलब 400 रुपए टच करके आया है, और अभी भी ऑलमोस्ट बॉटम पे ही है, 10-20%, मतलब 5% ऊपर होगा बॉटम से. तो माई पॉइंट इज, एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर, bottom fishing is the most riskiest thing to do. Correct. Riskiest thing to do, right? Even though मतलब अंदर से आवाज आती है, all the fundamental investors want to do it. They feel कि यहाँ पे bottom हो गया, यहाँ पे value आ गई, बहुत ही सस्ता हो गया. लेकिन जो real value होती है वो किसी को पता नहीं होता. अच्छा, अब इसमें इस बीच क्या हुआ कि प्रमोटर ने भी खूब बेचा है, भर भर के बेचा है. तो प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे ना तो काफी कम हो गई है. आई थिंक इनके एक जो 42% थी, जो कि आज 37.9% हो गई है. सो दैट इज वन थिंग. अच्छा, अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा भी यूज कर रहा होता, सो फॉर मी, मैं पूरा यूज कर रहा हूँ, तो इसीलिए आई नेवर टच दिस स्टॉक एट एनी लेवल्स. यहाँ पे तो मुझे वैल्यू ही नहीं दिख रही थी, बट मुझे ना ये 1000 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए के आसपास वैल्यू दिखना शुरू हो गई थी. मुझे लग रहा था कि यहाँ पे वैल्यू है, बट आई नेवर टच्ड इट. बाय बिकॉज द ब्लैक लाइन इज अबव इट, राइट? ब्रेकआउट आ नहीं रहा है, ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, राइट? लोअर हाई, लोअर लो. ये हाई जो है वो इसके नीचे है, ये अगला उसके नीचे है, अगला उसके नीचे है, अगला उसके नीचे है, राइट? ये स्टेज क्लियर, स्टेज 4 है. उसके बाद ये स्टेज, अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम आई, बड़ी सी वॉल्यूम आई. ये मार्च 2023 वाली बात है. चल देखते हैं इसमें क्या हुआ था. मार्च 2023 में जो रिजल्ट आया था, आई थिंक मार्च क्वार्टर में शायद थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखा था. 250 से 271, मार्जिन 15% से 19% गया था. मार्जिन एक्सपेंशन हुआ था, तो लोगों को लगा था बॉटम हो गया है. थोड़ी बहुत कमेंट्री बुलिश आई थी, ठीक है. लेकिन वो क्या हुआ, एक क्वार्टर में ऊपर गया, बट इट नेवर ब्रोक आउट. मतलब डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं हुआ, राइट? क्योंकि जो इंडस्ट्री के लोग होंगे शायद उनको ज्यादा आइडिया होगा कि भाई नहीं है, अभी बॉटम नहीं बनाए है, जो भी, आई डोंट नो. मतलब टू बी ऑनेस्ट, आई बॉट अराउंड 550 एट दिस टाइम. आई बॉट इट हेयर थिंकिंग कि यहाँ बॉटम हो गया है, क्योंकि वैल्यू मुझे अभी आज भी वैल्यू दिखती है. वैल्यू तो लूजली सेइंग होगी, मतलब एट दिस प्राइस 550 पे भी होगी. हाँ, ठीक है, मुझे वैल्यू दिख रही थी. एंड यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे ना, तो ये इस कैंडल में ना ब्रेकआउट आया है, इसके ऊपर गया है ब्लैक लाइन के. एंड इवन दो पूरा फ्लैटन आउट नहीं हुआ है, बट थोड़ा थोड़ा फ्लैटन आउट होना शुरू हो रहा है. मतलब इवन दो पूरा नहीं हुआ है, बट यू नेवर नो कि यहीं पे फ्लैटन आउट होगा या थोड़े दिन बाद होगा. वो हाइंडसाइट में दिख रहा है कि उसके नीचे और गया है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उतना क्लियर नहीं था. तो एनीवेज, उसके एक हफ्ते के बाद ही ये वापस से ब्रेक डाउन दे दिया. आई थिंक मैं 510-520 रुपए पे यहाँ पे निकल गया. ठीक है, तो मैं 550 पे लेके 520 पे निकल गया यहाँ पे. एंड अब वो 520-400 आ गया है, राइट? एंड in this point 1 year has already, almost 1 year has passed. This is last May से अब ये अगला मई आ गया है, right? So one is I was able to save on the opportunity cost. Right. I was
I did not. I allocated a decent position. I think 4% something 3-4% allocate किया, but हम्म, I did not lose big on a big position. वो हम्म, I think the biggest thing is कि कभी भी बड़ी पोजीशन पे बड़ा घाटा नहीं खाना बड़ा है. घाटा नहीं होता, छोटी दैट पोजीशन पे बड़ा घाटा हो जाए कोई बात नहीं, कोई बात बड़ी पोजीशन पे छोटा घाटा हो जाए कोई बात नहीं, वो तो मतलब पार्ट ऑफ द गेम है, वो चलता रहेगा. नोबडी बड़ी पोजीशन पे बड़ा घाटा नहीं होना चाहिए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. राइट. तो वो चीज अवॉइड हो गई यहाँ पे. उसके बाद ये स्टॉक अब 400 रुपए पे आ चुका है. अब यहाँ पे मुझे आज भी वैल्यू दिखती है, लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर आप चार्ट देखो, मतलब चार्ट के हिसाब से हम्म, ये बन गया है सपोर्ट. हम्म, ये जो अच्छा अब ना लोअर लोअर लोज नहीं बन रहे हैं. जो हम्म, इस बार लो बना है वो इक्वल टू प्रीवियस लो है. ठीक है. विच इज बेसिकली, अभी मुझे पता नहीं है, अब यहाँ से ये गिर के और नीचे आ जाए तो मेरा व्यू अभी भी नेगेटिव ही रहेगा. बट माई पॉइंट इज लुक एट द ब्लैक लाइन जो एकदम क्लियर 45 डिग्री से नीचे जा रही थी, ना ऑलमोस्ट 0 डिग्री पे साइडवेज हो गई है. साइडवेज. एंड स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसको कट कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, थोड़ा थोड़ा, मतलब इट हैज स्टार्टेड, अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, बट इक्विलिब्रियम की थोड़ी थोड़ी क्लोज आ गया है इक्विलिब्रियम के. मे बी 6 महीने बाद इक्विलिब्रियम पे आके ब्रेकआउट देगा. But as a value investor, this is a time where I'm okay to put 0.5% of my portfolio into this. But जैसे ही ये वापस से ऊपर जाएगा, maybe, and I'm happy to buy it at 550 again. I'm not happy to buy it at 400 right now, right? Because जो वैल्यू मुझे दिख रही है वो, अगर मैं आपको वैल्यूएशन शीट दिखाता हूँ, वो आई थिंक 35% कैगर या 40% कैगर दिखा रहा है एट दिस प्राइस. इट इज टेलिंग मी that Margin of safety मतलब is जो margin of safety is very high right. at this price. So there are two types of people. One is who will just buy and forget. But I mean, the point is, you always say it in hindsight. You could have bought and forgot here. You could have bought and forgot here. आपको यहाँ पे भी वो चीज वो दिख सकती थी. But my point is, ये थोड़ा बहुत आपको वो दे रहा है confidence. अब ये breakout आएगा. I think अब breakout शायद 460, 470 पे आ जाएगा. 430 पे already है. Maybe I might make it a decent position. But and obviously I will try to look at what is going on fundamentally and what everything else. And plus margin trend is 1.83. अच्छा होगा क्या अगर यहाँ से margin trend revive हो गया, 3% 5% margin आ गए, उसके next quarter 8% margin आ गए, then there is no looking back. Then the trajectory will become upward. Let me talk about next example. So volume I already talked about. This was my biggest loss. Shimaru. So at one point I have also hold this stock for 5 months for one times when it was called Salman Khan stock. I don't know now. Nobody calls it Salman Khan stock, I think. Yeah. So I was very bullish around these levels. Wait, that time only. Yes. I was very bullish around this. So 300 से 500 गया. I was very happy. यहाँ से breakdown हुआ. This time I never used to look at technical analysis. Now that I look at it, this was my biggest loser ever. Like I lost more than 50% on a decent size bet. I think 10-12% की bet पे I lost 50-60%. Oh, so look at the trend. ये black line के ऊपर है हमेशा. ठीक है. Stage 2 ये हो गया आपका. Stage 3 distribution, breakdown, then Stage 4 started. उसके नीचे 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 मैं वैल्यू करता हुआ इसको कभी बेचा ही नहीं. ना 350 पे बेचा, ना 300 पे बेचा, ना 250. मतलब द पॉइंट वाज नॉट कि मैं गलत हो गया. मैं यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे नहीं बेचा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. 500 पे नहीं बेचा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. लेकिन यहाँ नहीं बेचा, 400 पे नहीं बेचा, 300 पे नहीं बेचा, 200 पे नहीं बेचा. कोविड लोज में 40 रुपए का स्टॉक हो गया था. मैंने इसको फाइनली जो है कोविड के बाद 130-140 रुपए पे यहाँ पे बेचा. वही प्राइस है अभी भी. यहाँ माय पॉइंट इज कि बट आई थिंक द इमोशनल मेलोड्रामा अबाउट इट, कि तुम 500 से शेयर 50 का हो गया, क्या मतलब हद ही हो गई, राइट? इन हाइंडसाइट आई थिंक ये जहां पे भी टेक वाला एंगल रहता है ना, मतलब कि माय ऑब्जर्वेशन जहां पे भी, क्योंकि ये भी अपनी लाइब्रेरी को लेकर बहुत बुलिश थे कि हमारे पास ये जो कि टेक कहीं ना कहीं टेक है इन अ वे की सॉफ्ट टेक है, तो वो ऑब्सोलीट हो जाती है. मतलब टेक्नोलॉजी कैन किल इट एनी टाइम. मतलब उसको किल कर दिया. नेटफ्लिक्स आ गई और मतलब जो भी है इसकी लाइब्रेरी कहीं अब कहीं कंपटीशन बहुत आ गया था, बहुत ज्यादा आ गया, वैल्यू नहीं है. तो मे बी सारेगामा कुड बी किल्ड, मतलब वो भी उसी फेज में जा रहा है शायद. इट कुड बी सारेगामा का भी चार्ट देखेंगे तो इट में बी सिमिलर नाउ. सो आई थिंक सीक्वेंट साइंटिफिक
सो सीक्वेंट साइंटिफिक आई रिमेम्बर वेरी वेरी वेल कि यहाँ पे आई बॉट आई थिंक अराउंड दीज लेवल्स 130 120 यहाँ कहीं बाय किया होगा, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट आई थिंक आई बॉट इट एट अ रीजनेबल प्राइस। उसके बाद जो है ये सब हुआ था कि आपका नया मैनेजमेंट आ गया, मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, कार्लाइल को सेल हो रहा है, ये वो कुछ कुछ हुआ, स्टॉक वाज डूइंग वेरी वेरी वेल, बट बाय दिस टाइम आई हैड लर्न टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑल, एंड देन वो जब वो आपका मैनेजमेंट चेंज हो गया, देन एवरीवन वाज वेरी वेरी बुलिश, एंड देन उसके बाद जब रिजल्ट्स आए वो इतने गंदे रिजल्ट्स आए, एंड जो जो प्रॉमिस किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्विजिशन वो समझ में आया कि पिछला मैनेजमेंट अपने पुराने पाप छोड़ के गया है। तो आई थिंक इसको आप रिलेट कर सकते हो जब मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ। सून आफ्टर द एक्विजिशन द मार्जिन्स, लुक एट द मार्जिन्स, ये 10% के जो मार्जिन्स थे वो 1% के आए थे नेक्स्ट क्वार्टर में, वो वन ऑफ आने शुरू हो गए थे, एंड उसके बाद वो घाटा 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 घाटा, एंड मतलब इट नेट प्रॉफिट पे भी लॉस में हो गया था, मार्जिन स्टार्टेड फ्रॉम 9% टू -2%, ओके, एंड देन दे हैड टू डू ऑल द क्लीन अप, एंड देन द साइकिल आल्सो टर्न्ड, बट माय पॉइंट इज इसमें आई यूज्ड टू लुक एट स्टेज एनालिसिस, आई वाज एबल टू एग्जिट एट अराउंड 240 or so, I could not exit at around 300, but I was able to make a 2x here. मतलब वो otherwise 2.5x बनता, but I was happy कि भाई पूरा साइकिल सही से टाइम हुआ इसमें। Acha, there is one more rule which is a technical analysis. It's not related to what you have just spoken, but there is one rule यहीं पे शायद वो apply होता कि you made a 100%, 150% profit into it at one point of time. So if your profit is going down by 150% to let's say 100% पे आपने book किया actually using technical analysis, right? But is there a stopping point कि आप 150 से आप -20% reduce करोगे, जहाँ पे आप stop loss, mental stop loss in a way? मैं नहीं लगाता, स्टॉप लॉस नहीं लगाता। Why? मैं स्टॉप लॉस वगैरह क्योंकि इसलिए लगाता क्योंकि मैं साथ में फंडामेंटल क्लब कर रहा हूँ, एंड टू बी ऑनेस्ट इस पॉइंट पे एट 300 रुपीज जब ये स्टॉक प्राइस था, आई वॉज द मोस्ट बुलिश। ओके, मतलब तो ये लगा नहीं सकते मतलब वो लग नहीं सकता उस टाइम पे, क्योंकि फंडामेंटली मेरी आंखों के आगे भी पर्दा था। मतलब आई वाज सो बुलिश कि भाई कार्लाइल आके तो पता नहीं इनका क्या कर देगा, क्योंकि वो ये कह रहा था कि मैं ना अपनी ग्रुप की किसी बाकी कंपनी के साथ इसका मर्जर कराऊंगा, पेट में लेके जाऊंगा, पेट डिवीजन नया खोलूंगा, और मैं आई विल मेक इट टॉप 5 इन द वर्ल्ड कंपनी, मेरे पास ऑलरेडी एक्सपर्टीज है। स्टोरिफिकेशन वाज सो गुड, स्टोरिफिकेशन वाज सो गुड, आई वाज द मोस्ट बुलिश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड देयरफॉर ये जो रेड कैंडल आई इसमें भी मैं नहीं एग्जिट किया, आई एग्जिटेड अराउंड हेयर, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये हो गया कि भाई जो भी है पहले बेचो, बाद में सोचेंगे। अब तो मतलब रिजल्ट के बाद आई थिंक सून आफ्टर द रिजल्ट कि भाई अभी बेचो, जो भी स्टोरी है उसको बाद में देखेंगे, भाई पहले लेट देम शो सम इंप्रूवमेंट टाइप। I think similar I have faced in the Solara. In Solara, I had the same similar dilemma like you had. In the similar, it's the group company of this, the same guy, Arun Kumar. I can give you n number of examples. Hester Bioscience used to be one of my portfolio stocks. Bought at around whatever 800-900 rupees during COVID. They were doing a lot of expansions. I think इन्होंने ना I think one of the bad expansion that they did was कि इन्होंने कोवैक्सिन के लिए फैसिलिटी लगा ली। उस टाइम पे कोविड पीक पे था, सबको पता था कि ये फैसिलिटी कहीं यूज नहीं हो पाएगी जब तक ये लाइव आएंगी। ये जो आपका इंडियन कंपनी थी उसके लिए आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कोवैक्सिन वाली जो कंपनी थी, भारत वाली, यस, तो उनके लिए ये इंटरमीडिएट्स बनाएंगे फॉर देयर एंड कोविड वैक्सीन। उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ली, उसमें केपेक्स करा खुद से, उनका ग्रांट मिला, एंड देन यू नो बट दे वर लाइक यार नहीं यूज हुआ तो BSL-3 फैसिलिटी है, मैं अपनी किसी और काम में ले लूंगा, एंड वो फैसिलिटी अभी भी खाली पड़ी है। इस बात को 2 साल हो गए। अच्छा, एक्सपेंशन बहुत भर भर के किया, आपका एनिमल फार्मा में एक्सपेंशन किया, साथ में आपका पहले पोल्ट्री में थे, फिर एनिमल फार्मा में किया, फिर उसके बाद पेट्स में करा। बट व्हेन यू लुक एट द नंबर्स यहाँ पे ना, इवन आफ्टर सिमिलर स्टोरी लाइक वेलिएंट, ह्यूज केपेक्स के बावजूद नंबर्स आ नहीं रहे थे, मतलब यूज नहीं हो रहा था, जो भी बोल रहे थे वो हो नहीं रहा था। तो फंडामेंटली मैं ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा नेगेटिव होना शुरू हो गया था। बट माय पॉइंट इज आई नो पीपल जो कि अभी भी इस स्टॉक में बैठे हुए हैं। ये ना 2700 होके लौटा है, 2700 से इट इज नाउ 1400, एंड पीपल आर स्टिल इन द होप्स कि मैनेजमेंट ना हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ नई गोली दे देता है।
ठीक है, और ये गोली पिछले 2-2.5 सालों से चल रही है। बट द पॉइंट इज कि ये, बिकॉज आई अंडरस्टूड कि भाई यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज ये पूरा चला है, देखो लुक एट द एक्यूमुलेशन फेज, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एंड यहाँ पे मैंने तो ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं तो इस बार ब्रेकडाउन का भी वेट नहीं किया था, मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में ही निकल गया था, तो आई वॉज एबल टू गेट अ बेटर प्राइस, क्योंकि फंडामेंटली भी स्टोरी खराब हो रही थी, मेरे को लग रहा था खराब हो रही थी, तो इसमें आई डेंट यूज प्योर टेक्निकल एनालिसिस, बट दैट इज वेयर द पॉइंट कि मैं बोल रहा था कि अगर आप फंडामेंटल में वीक हो तो जरूर देखो टेक्निकल, कि अगर आप इस रेंज में नहीं निकले हो ना, तो आप एटलीस्ट 2100 पे, 2200 पे या 2000 पे या कहीं तो निकल जाओगे, एटलीस्ट यू विल नॉट हैव टू सी दिस एंटायर जर्नी। अच्छा, इसमें ये सेम कंपनी है जो विटामिन D3 बनाती है थी फॉर एनिमल्स? वो अलग है, आई नो दैट कंपनी, आई थिंक इट इज कॉल्ड फर्मेंटा बायो, आई थिंक दैट इज दिस, ये अलग है आई थिंक, बट द चार्ट इज वेरी सिमिलर बिकॉज़ दे आर इन द same industries, they are similar. द हेस्टर इज इन द पेट फार्मा बिजनेस। Okay. So Dixon, I think this is something that I sold too early. But अगर if I had used technical analysis, I wouldn't have sold it so early. मतलब प्योरली कि वैल्यूएशन बेसिस पे मैं इसको 2500 पे बेचा, प्योर मतलब चार्ट बहुत ही अच्छा था, आई थिंक इट कुड हैव बीन, मतलब लिया भी मैंने अच्छे भाव पे था, इट वाज स्टिल अ डिसेंट, आई थिंक ये मैंने कोविड में खरीदा था, आई थिंक अराउंड 800-900 के आसपास, यहाँ कहीं खरीदा था, 2500 पे बेचा था, तो ठीक ठाक पैसा बना। लेकिन अगर मैं समझता कि भाई इवन दो वैल्यूएशन इज स्ट्रेच्ड, बट यू नो there is nothing technically wrong, and obviously the theme is long, theme was even now is a very long term theme, but वही है कि वो लग रहा था कि नहीं यार 150 PE हो गया, अगले 100% ग्रोथ दे के भी जो है यू नो आई वाज नॉट एबल टू जस्टिफाई अ 75 PE, उस टाइम पे आई थिंक व्हाटएवर 150-200 PE हो गया था, और ग्रो इट वाज ग्रोइंग एट 70-80%, 100%, बट इवन आफ्टर द ग्रोथ वो लग रहा था कि यार ये तो बहुत ही महंगा है। I think that is why you say, you know, you never sell on valuations. So, but अगर टेक्निकल एनालिसिस यूज करा होता तो यहाँ पे एग्जिट मिलता, ये पूरा स्टेज राइड करके 5500 जा करके यहाँ पे एग्जिट होता, 4400 पे एग्जिट होता, बट वहां जहाँ पे बेचा था उससे डबल मिलता। देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, मतलब आप, बट माई पॉइंट इज कि यू कैन नाउ स्टार्ट लुकिंग एट स्टॉक्स, जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, वन ऑफ माई पोर्टफोलियो स्टॉक्स, आई was able to make decent returns, but यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट ये जर्नी राइड करा, ये मुझे लगा कि डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे ब्रेकडाउन आया। अच्छा, फंडामेंटली मुझे लग रहा था कि स्टोरी अभी बाकी है, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर स्टिल गिविंग डिसेंट रिजल्ट्स, लेकिन यहाँ पे पूरा ब्रेकडाउन आया 200 मूविंग एवरेज पे, तो मैं 49 पे निकल गया, बट ये पूरा का पूरा वापस आया तो 53 पे वापस खरीदा। I still feel fundamentally the story is still left. Small finance banks के numbers अभी अच्छे आ रहे हैं, NPAs अभी उतने ज़्यादा नहीं बढ़ने शुरू हुए हैं, they are still declining, ROC is still improving. So yeah, that is how it's more of a technical call for you. It was more of a, because the candle looked so bad कि you know, look at the engulfment, कितना बड़ा रेड कैंडल बना है यहाँ पे, मतलब पूरा दिस इज नॉट जस्ट मतलब विक है ही नहीं, ऑलमोस्ट पूरा फुल बॉडी वाला कैंडल है, तो वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा नहीं है, बट साइडवेज जा रहा था। बट आई वाज लाइक, आई थिंक इट इज मोर ऑफ एन इंश्योरेंस फी, कि आपने ये इंश्योरेंस दिया, आप निकल गए, आपको 2-4% का घाटा हुआ, बट योर व्यू इज स्टिल पॉजिटिव फंडामेंटली, सो यू माइट एंटर बैक एट अ लेटर स्टेज, बट अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो एटलीस्ट आपने 25-30% बचा लिया, जो कि गिरता तो कम से कम यू नेवर नो। अगर एक्चुअली काफी बार इस टाइप की स्टोरीज में क्या होता है कि नंबर्स खराब आए, यू नो स्टॉक स्टार्टेड, इसके तो खैर नंबर्स तो नहीं आए, बट दे गेव अ अपडेट, अपना क्वार्टरली अपडेट दिया है, तो नंबर्स अच्छे आए हैं, तो आई एम लाइक यार फंडामेंटली अभी भी स्टोरी बाकी है, प्लस टेक्निकली नाउ इट इज अगेन बैक above the 200 EMA, so I'm back in the story now. It's more of a geo effect when this disruption came to Paytm and everybody, so yeah, it was a temporary fall. One more cycle I personally played is Green Panel Industries. यहाँ पे टेक्निकल नहीं यूज करता, यहाँ पे मैं टेक्निकल यूज करता था, 2022 में ये मैंने एग्जिट लिया। सो ये पूरा साइकिल में क्या हुआ था, शिपिंग क्राइसिस जब आया था कोविड के बाद, तो उस टाइम पे इंडिया में पूरे MDF के इंपोर्ट्स बंद हो गए थे, ऑलमोस्ट जीरो इंपोर्ट आ रहा था MDF का। इन्होंने भर भर के कमाइयां करी हैं, क्योंकि पोस्ट कोविड द मार्जिन जो कि बहुत ही कम थे, दे ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ऑफ मार्जिन हो गया, क्योंकि आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट प्राइस, लेकिन MDF का प्राइस कई गुना हो गया था, मतलब कि
जो 15,000 रुपए होता था वो वन पॉइंट ऑफ टाइम पे 30,000 रुपए पर जो भी उनका यूनिट होता है वो हो गया था. द स्टेडी प्राइस वाज 25,000 28,000 प्लस आफ्टर दैट कोविड पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एकदम से बूम आया था. मतलब ऑल द रियल Right. एस्टेट स्टॉक्स डिड वेरी वेल. तो बट इसमें मेजर प्रॉब्लम ये था, द स्टोरी वाज नोन. द स्टोरी Right. वाज कि यार FY25 में आई थिंक सेंचुरी एंड शील डेको Since एंड वन मोर प्लेयर दे ऑल वर डूइंग केपेक्स और उनका केपेक्स right. लाइव आने वाला था. सो इट वाज नोन कि मार्जिन सस्टेन नहीं करेगा. नहीं करेगा. Correct. लेकिन दैट वाज सपोज टू हैपन वेरी लेट, नॉट इन FY22. बट Right. अगर उसका वेट करते कि भाई केपेक्स आते टाइम बेचेंगे तो तब तक तो बहुत कुछ मतलब कि निकल जाता. और अनसर्टेनिटीज मार्केट पूरा में आ जाती. हाँ. सो 600 पे जाके अराउंड 440 हुआ. आई थिंक आई एग्जिटेड समवेयर अराउंड हेयर 470 460 यहाँ पे कहीं पे बेचा होगा. बट But what was your selling trigger point in terms of technically? सेलिंग ट्रिगर पॉइंट वाज वेरी सिंपल हेयर. द मार्जिन इंप्रूवमेंट हो गया था 16% से 27% मार्जिन चला गया था. प्लस आई न्यू कि शिपिंग क्राइसिस बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा. अगले 2-4 महीने में शिपिंग लाइंस वुड बी फाइन एंड सो इंपोर्ट्स आने शुरू हो जाएंगे. एंड इनकी कैपेसिटी साउथ इंडिया में ज्यादा है और वहां पे इंपोर्ट्स ज्यादा आते हैं. नॉर्थ इंडिया में इंपोर्ट्स आते नहीं है. Right. तो मार्जिन डिक्लाइन होने ही होने हैं. तो आई वॉज नॉट वेटिंग फॉर द नंबर्स टू ड्रॉप. आई वॉज वेटिंग फॉर द चार्ट्स टू टेल मी कि भाई टॉप हो गया एंड आई वांटेड टू एग्जिट एट सम पॉइंट. तो ये अप्रैल 22 के आसपास जुलाई जून में यहाँ पे कहीं एग्जिट कर दिया था मैंने. आई थिंक ये रेड कैंडल पे किया होगा मोस्ट लाइकली, जब ये पूरा बड़ा रेड कैंडल काटा है इसको. So I actually happened to hold it. I could not book profit into it. I kind of exited at the no loss, no profit in this counter because I did not look at technically. Why when margin started crossing down because of these things which played out. हालांकि commentary कभी नहीं आ रही थी. एंड अगर अभी देखोगे तो आई थिंक आई डिड नॉट स्टडी द लेटेस्ट क्वार्टर्स. लेकिन यहाँ पे वापस से इट हैज स्टार्टेड टू फ्लैटन आउट एंड लुक एट इट इज अगेन इन बैक इन काइंड ऑफ स्टेज 1. इट इज नॉट फॉलिंग मोर क्योंकि रियल एस्टेट साइकिल. कॉम्पिटिटर जो है रुशील डेकोर का आप चार्ट देखो which is a parallel, उसकी कैपेसिटी लाइव आ रही थी. उसने कुछ दूसरा पिक्चर है उसका. मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैं दोनों पे खेला हूँ. मैं रुशील और ये दोनों लेके बैठा था. बट मेनली प्रॉब्लम ये हुई कि रुशील में मैं ज्यादा पैसा नहीं बना पाया और वो इसलिए क्योंकि मैं इसको बेचा यहाँ पे. ठीक है, जब ये 200 DMA को क्रॉस किया और ये जब तक ये ना 560 से 360 हो गया. काफी फॉल है. ज्यादा बीटा थी, हाई बीटा. ज्यादा बीटा हाई था, इसलिए इसमें मेरा पैसा बना नहीं ज्यादा. हालांकि थोड़ा पैसा बना होगा लेकिन जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बना. उसमें फिर भी बना. इसमें ना एक कॉन्सेप्ट और होता है. इसमें ये बोलते हैं कि भाई जब आपका 200 डे मूविंग एवरेज और उसके बीच में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा हो जाता है. क्योंकि सो यू आल्सो लुक एट मतलब 50 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज, राइट, जो कि थोड़े छोटे हैं, विच आर क्लोजर. तो जब आपको रिस्क ज्यादा लगने लगे, मतलब क्लोजर टू योर पॉइंट, डू नॉट लुक एट. सो आई दैट इज व्हाट आई डू नाउ. अगर मैंने मन बना लिया है फंडामेंटली कि मुझे एग्जिट करना ही करना है, राइट, तो मैं 200 की जगह 50 DMA देखना शुरू कर देता हूँ. बट दैट इज व्हेन माय फंडामेंटल व्यू इज ऑलरेडी नेगेटिव एंड नॉट रियली. आई एम जस्ट होल्डिंग इट कि भाई ठीक है अभी जा रहा है, थोड़ा बहुत 10-20% और बन सकता है तो बना लो टाइप. इफ यू कैन सी दैट दिस अ कंपनी कॉल्ड PNC Infratech. ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है. ओके. मतलब कोई वीकनेस तो नहीं है एटलीस्ट राइट नाउ. इफ यू लुक एट here, right, so this was a stage 4. ये black line यहाँ पे 2022 से it has started trending upwards and it is not showing weakness. हालांकि उतनी strength नहीं है because the slope is not that great. So the order wins are, I feel that the order wins that they are getting are less compared to others, or I don't know, I'm not tracking it actively. तो इसीलिए slightly less. But weakness नहीं है क्योंकि if you look at this range, so along with this 200 DMA, if you look at this line जहाँ पे मैं इन टॉप्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे ये पूरा रेजिस्टेंस है. तो ये इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया है एंड नाउ दिस ट्रेंड लाइन विच इज दिस लाइन इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट. सो ये इसके नीचे नहीं जा रहा है. सो इसका मतलब ये इट इज चेंजिंग ऑर्बिट. Earlier it was trying to move in this channel, now it is trying to move in a different channel. Okay. So it is
technically it is showing very bullish behavior. But if you look at a very short term, अभी आपने 200 DMA पे देखा, let's say if you're looking at 50 DMA, does it So change the 50 picture? DMA is the pink line जो इसके हम्म। नीचे नीचे चल रहा है. हम्म, सो पहले अगर आप देखो तो पिंक लाइन के ऊपर नीचे क्रॉस कर रहा था, बट हम्म, सिंस लास्ट 3 मंथ्स इस पे सपोर्ट ले रहा है 50 डीएमए पे. अच्छा, हम्म, एक चीज और बोला जाता है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट 200 डीएमए, लुक हम्म, एट द मूविंग एवरेज जहां पे टकरा के वापस जा रहा हो. तो काफी बार क्या हम्म, होता है, अगर बहुत ज्यादा बुलिश पैटर्न होता है, हम्म, जैसे मैं श्नाइडर का ही ले लेता हूँ, हम्म, तो उसमें क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ 200 डीएमए वो किसी और जैसे, हाँ इसमें देखो, इसमें ये चीज दिख रही है. सो यहाँ पे दिस इज वन पॉइंट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, and it is not even crossing the 50 DMA, which is this pink line, हम्म, right? हम्म, And every time it is crossing the 50 DMA, it is just bouncing back. So ऐसे cases में instead of looking at 200 DMA, look at whichever DMA it is taking a support at. You have to do permutation combination. Yeah. So you just have to see कि भाई किस पे, but इसका तो मतलब कि क्या है, these are all technical things, but you have to obviously combine with fundamentals and say कि भाई this is my view. Yeah. So इसमें मतलब अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको ये लग रहा है कि ये ना स्टॉक अपनी लीग के बाहर चला गया है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं है जितना मार्केट दे रहा है, ये फंडामेंटल व्यू बना, देन आई वुड से कि डू नॉट वेट फॉर इट टू क्रॉस 200 डीएमए, तब तक 50% प्रॉफिट चला जाएगा. काफी दूर है. राइट. सो आइदर प्ले ऑन 20 डीएमए और 50 डीएमए, ताकि एटलीस्ट यू वांट टू प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ योर प्रॉफिट इफ योर व्यू इज नेगेटिव नाउ ऑब्वियसली. So आप एक बार just a concluding question with respect to your setup, can you show your setup? Like I've seen your Nifty 50 का भी आप base लेते हो, so why you take RS of Nifty 50? What is the utility of it? So relative strength, मतलब so obviously दो टाइप के इंडिकेटर. So now let me talk about indicators. तो एक होता है RSI, एक होता है RS. RSI होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RS होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ. RSI में उसी स्टॉक का हिस्ट्री लेकर के आप एक इंडेक्स बनाते हो. ठीक है, मतलब कि जैसे कि जब उसमें होता क्या है कि आप ये देखते हो कि पिछले 20 दिनों में कितने बार अप गया है और कितनी बार डाउन गया है. राइट. लास्ट 20 डेज में कितनी नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज गॉन अप एंड नंबर ऑफ टाइम इट हैज गॉन डाउन. एंड देन ऑब्वियसली अगर 20 में से 15 बार ऊपर गया है और 5 बार नीचे गया है, दैट मीन्स इट इज इन अ राइजिंग ट्रेजेक्टरी कंपेयर टू, मतलब कि कंपेयर टू इट्स पास्ट. ये हो गया RSI. एक होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ. ये होता है कि भाई आपका जो स्टॉक है वो तो 15 बार ऊपर गया है पिछले 20 दिन में, लेकिन मार्केट जो है वो पिछले 20 दिन में 18 बार ऊपर गई है. तो अगर आपका स्टॉक 15 बार भी गया है, इट इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब, राइट, बिकॉज द मार्केट इज डूइंग बेटर देन यू. So relative strength compares it to a index, compares your stock to an index. तो अगर सिंपल फॉर्मूला में बात करें तो RSI of your stock divided by RSI of index becomes your relative strength. Or you could also say stock price of your company divided by stock price of the index. Every day you plot it and that becomes your relative strength. So relative strength जो RSI जो index है वो 0 से 100 के बीच में लाई करता है. तो अगर 50 के नीचे गया that means खराब, 50 के ऊपर गया that means अच्छा. Okay. And relative strength lies between -1 and 0 and 2. The baseline is 0. 0 के नीचे गया तो इसका मतलब you are performing worse than the index, and 0 के ऊपर गया that means you are performing better than the index. Okay. So they all happen simultaneously. तो जो मैं बोल रहा हूँ कि जब स्टेज 1 में आएगा 200 डे मूविंग एवरेज अपवर्ड ट्रेंडिंग शुरू हो जाएगा. तो अगर 200 डे मूविंग एवरेज अपवर्ड ट्रेंडिंग शुरू हो जाएगा and if it is doing a decent job compared to the index, your relative strength will also becomes greater than 0. And then relative strength will also start trending upwards. And the higher the value, the higher it is, the better it is doing compared to the index. So in a way you are looking at this number more to find uptrend stock. Yes. मतलब I look at relative strength just to see कि ठीक है, मतलब ये अच्छा कर रहा है, but how is it doing compared to the index? Just to see that. Sanitize this return. So anything else on this
on this trading view, what you look at, which is interesting? I do not look at a lot of indicators. I just look at price, volume, and relative strength. That's all. Okay, that's all. There are like n number of indicators that people use, but they are based on top of price and volume only. उनके क्योंकि रॉ डेटा प्राइस और वॉल्यूम ही है, उसी का आप कुछ ना कुछ खिचड़ी पका के कुछ रेशियो बनाते हो. बट अगर आप रॉ डेटा ही देख रहे हो, आई थिंक दैट इज गुड इनफ फॉर मी. आई थिंक लास्ट पॉइंट आई वांट टू से इज ऑलवेज लुक फॉर ट्रिपल कंफर्मेशन, विच इज, तो एक चीज ये हो सकती है कि प्राइस अच्छा कर रहा है, यानी प्राइस इज ट्रेंडिंग अपवर्ड्स, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, राइट? तो उतना बुलिश नहीं है. प्राइस इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन 0 एंड इंप्रूविंग, राइट? कंबाइन इट विद योर फंडामेंटल्स एंड यू हैव अ विनिंग रेसिपी. So that should be the place where you want to do your highest allocation. अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है, then इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा बनेगा नहीं, but just that percentage of bullishness की बात है. Okay, so in a way these are like the criteria for finding uptrend stocks, stage 2 वाले stocks ढूंढने का तरीका है. Exactly. But for turnaround stage 3 से वापस stage 2 में आने वाले लोग वाले भी होंगे, वो इसमें शायद नहीं आए. Maybe they may not figure it. मतलब वो fundamentally समझ में आएगा, but technically you can find. Right. अगर technically मतलब ये बोलते हैं कि भाई अगर बेस बन रहा है, immediate resistance नहीं है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, breakout दे रहा है, that is better. लेकिन काफी बार क्या होता है, V shape चीजें आ जाती हैं. जैसे काफी बार टर्न अराउंड में क्या होता है कि अचानक से कोई इवेंट हुआ, V shape रिकवरी आ गई, उसमें बेस ही नहीं बना, राइट? गिरने के बाद ऐसे ग्रेजुअल बेस नहीं बना, धीरे धीरे ऊपर नहीं गया, ब्रेकआउट नहीं आया, सीधा ब्रेकआउट आ गया. तो मतलब टेक्निकल एनालिसिस में वो शायद थोड़ा कम अच्छा है, क्योंकि ये बोलते हैं कि बेस बड़ा होना चाहिए. बेस बड़ा होने का थ्योरेटिकल मतलब ये है कि जिनको निकलना था, क्योंकि बेस इज द जोन जहां पे लोग निकल रहे हैं, जो पुराने हैंड्स बदल रहे हैं, नए हैंड्स आ रहे हैं, तो जितना बड़ा बेस उतना बेटर है. तो अगर वो चीज नहीं है तो टेक्निकली वो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा. ओके, so okay, ideally there should be a base formation, उसके बाद ये तीनों जो क्राइटेरिया आपने बताया वो होना चाहिए. एंड देन ओवरहेड सप्लाई कम होनी चाहिए, यानी कि आप वो ऊपर का चार्ट देख के पता चल जाए कि ऊपर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए. वंडरफुल. आई थिंक ये लास्ट वन एग्जांपल आई रियली वांट टू प्रेजेंट इज न्यूजेन. सो आई थिंक वी डिस्कस्ड इन द लास्ट मीटिंग आल्सो. या सो आई वांट टू जस्ट टॉक अबाउट इट. सो लुक एट इट. 2022 में बेस बना, stage 2 आया, and right now if you look at it, it was taking support at 50 DMA, right? यहाँ पे 50 DMA पे रुका, यहाँ पे 50 DMA पे रुका, यहाँ पे 50 DMA पे रुका, यहाँ पे इसने 50 DMA तोड़ दिया है. Okay, right? So as we were looking at it, अगर मैं मेरे पोर्टफोलियो में होता तो I would have already exited it. Why? Because I want to protect all my money. और ये 50 DMA पे सपोर्ट ले रहा था, जो कि एज आई वाज सेइंग कि पहले मैं 200 DMA का वेट करता था. अभी सो टू कंक्लूड, आई थिंक चाहे ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, आई थिंक इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट. डोंट बी अ फंडामेंटल इन्वेस्टर वन डे एंड अ टेक्निकल एनालिस्ट अनदर डे, राइट? तो आई थिंक ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. और क्योंकि लोग करते क्या है कि अगर आप दोनों चीजें कर रहे हो तो एटलीस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेपरेट आउट करके रखो कि ये ट्रेड्स हैं और ये इन्वेस्टमेंट हैं. और या तो अगर आप टेक्नो फंडा या फंडा टेक्नो कुछ भी कर रहे हो तो फिर अपना एक प्रोसेस बनाओ और उसको फॉलो करो, और उसको फिर धीरे धीरे चाहे ट्वीक करो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टॉक में आप अलग तरीके से बिहेव कर रहे हो और दूसरे स्टॉक में आप जो है अलग तरीके से बिहेव. सो या दैट इज व्हाट आई हैड फॉर टुडे. ओके, amazing session. Thank you, Subham, for taking time out and doing it. Doing this knowledgeable session. You have shared almost a great library of yours, which will benefit Sadhan viewers, because we have so far developed a good understanding of fundamentals. And when allocation sizing का जो topic आता है, उस पे actually fundamental investor have very less understanding of कि allocation sizing कहाँ पे करना है. So if we get an hint of ki technically also this is looking good, then the sizing becomes easy. So it's a kind of a quantitative based indicator you have shared, which I'm sure the viewers who are watching this and who have seriously watched it, they have got knowledge for the life to
make it big. And going by your example, you yourself has created big wealth out of using these strategies. So इसमें proof is already there in front of us. So it's just a matter of how a viewer can modify his or her strategy in terms, if somebody is a trader, then how he can learn how to look at fundamentally those things, and he'll be able to relate to you in a better manner because you use their language also. Most of the time we talk about on the fundamentals matters, and you have given a very enthralling session to Southern viewers for marrying these two twans, which is very rare. And that's amazing sessions. Thank you Shubham for this, and wish you all the best in your investing life and in your financial journey. Look forward to more such sessions. On behalf of the Southern viewers, I can ask for them that we look forward to see you more, so that we can actually benefit the larger Awesome. general. Thank you so much. Thank you, Amitabh. I think one more thing, actually, I forgot to give a disclaimer. So any stock that I have discussed, I might have a position or I might not, really presented it to, talk about the stock as such, but to explain the process, and nothing is a recommendation, of course. All the stock discussed here are for educational purpose, and it's a pure play educational video. It is. One should not go and take investment call basis what we have discussed, because the purpose of showing these names was so that you can understand the process. It's not about the fishes, it's all about learning how to swim. And it was a great learning for all of us, including me in this. So thanks, Shubham.